हो गया, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कोई इशू नहीं, इस सिस्टम को हटा दो। सर को माउस वो लॉगिन है वहां से। Am I audible? हेलो, देखिए RN सिंह साहब हैं क्या? इधर भी आ रहे हैं, इस पे रहेंगे। एक आदमी जरा बताइए, हमको थोड़ा चश्मा से दिखाई नहीं दे रहा था। Am I audible? Someone in the audience, please let me know whether I am audible. Hello? Hello? Am I audible, sir? Yes. Good morning. Good morning. Am I audible, please? Technical challenges. Every day we are coming across a new technical challenge and we are learning new things. Very good. Challenges always gives us opportunity to learn. Corona has given us some art of living. We were not behaving properly. We were not regulating our life. Hello? Yes. Sir, you are audible. Hello? Do you hear me? Yes, sir, I can hear you. But what about the others? From C Ganga, can someone say whether I am audible or not? Sir, you are audible. I want a response. Sir, am I audible? Yes, I listen you. Sudhanshu Kumar ji. Sudhanshu Kumar ji, can you unmute and say me whether I am audible to you or not? Yes, sir, audible. Yeah, you are audible. Oh, great. C Ganga. From C Ganga, can someone respond? Yes, sir. Sir, he responded. You are audible. Abhijit, please confirm. RN Singh साहब को आवाज आ रही है सर आप ऑडिबल हो and Yogendra Kumar Giri has not joined. Sir, you are well audible. I can hear you. Okay. And Sudhanshu sir also responded. You are audible. Okay, if I'm audible and possibly due to some of these technical challenges, Shri R.N Singh Saab might be trying to join and he is not visible to me at present. So in order to save time and move forward, I will request my senior most guide here, Professor Rana P.B. Singh, to lead this discussion and
once Shri R.N Singh Sahab and our Honorable Shri Yogendra Kumar Sahab from Shantikunj Hardwar, he joins, we will welcome them, and we will continue with our discussion. Finally, they have to give their views. The objective of this parallel session is to first accept that the conditions in the catchment of river Assi is really socially a challenging issue. We cannot just wish away something. Social things. We are living in a social world, and IITs are a part of that. Definitely, we are not going to mingle. We are not going to interfere in the social life. But then we have a challenge, and we have to accept this challenge, that whatever recommendations and suggestions we are going to make, it is going to be implemented in the society. So society has to accept it, or telling it in a different way, we have to create a model which is socially acceptable. As an IIT, we cannot vision a solution which is not taking care of the sensitivity of the society. Shri R.N Singh Sahab, who is a competent police officer, he has spent his 40 years of life in police services. He is an IPS officer. He has known this part of the society. He is from near Varanasi. He has worked very closely with the society in which this Assi river is existing today. So, and then Shri Yogendra Kumar Giri, who is currently working with Shantikunj. He has worked extensively in Madhya Pradesh and approaching from a social angle, acceptable angle. He has enlivened many rivers which were virtually drying and dying. So with those things in mind, I know all these persons in person also. So with those merits in mind, I have invited them to chair this session. And then we have learned speaker, Professor Rana P.B. Singh, who has spent his more than 40 years of his life in understanding the cultural landscape of Varanasi. We have with us Professor U.K. Chaudhary, who has seen the river systems, the water, the science of river very deeply. However, the challenge remains not. Today, the challenge is not of science and technology. Today, the challenge is social acceptability of application of these sciences in society. So, although I see the speaker like Dr. Anurag Ohri, I have shared this in the information brochure or short notes on river Assi and Varuna. We have taken drone map and we have divided it in 7 sections. Only in this 7 kilometers of a stretch from Karmadeshwar Mahadev Mandir down to the confluence point, we have shown in different stretches what is the width of river left today. This gives you an ample indication what is the level of encroachment in the Assi. So, while at one hand we are discussing deep science, here we are challenged with a different condition. How to implement this scientific understanding, those engineering knowledge, technological discussions and decisions in this Assi. So, with the great faith in you, I welcome all of you and I humbly submit before you that please suggest us, guide us, the real stepwise path of progression so that we can show to the society that this Banaras Hindu University is not only talking Sabhi Vidyaon ki Rajdhani, we can make our society really healthy and happy
This Banaras Hindu University was not funded by any government agency or organization. Madan Mohan Malviya ji begged from door to door, but he created a marvelous historical university. And we are the sons of the soil. We owe to the society. We accept this, and that is the purpose of organizing this international conference. We very humbly admit that we are in a difficult situation, challenging situation. Please help us and guide us. So this group will give us a footprint how to move forward. So with this small note, I will hand over. Yes, before I leave, I will try to convey that in this panel, there are learned speakers. There are legal experts, water law experts, judges from the High Court. And so their experiences in handling the social issues, that will be a great asset to us. So we have with us Dr. Avdesh Pratap ji and many other scholars. And I welcome them, and we seek their guidance in our river Assi. So thank you very much, and I hand it over to Rana P.B. Singh with the hope that Shri R.N Singh Sahab and Yogendra Giri Sahab, if he joins, he will lead us. Thank you very much. Professor Singh. Yeah, it is there. Yeah. मेरी घंटी कहीं बज रही है सर सो आप लोग Thank you very much. Let us start without losing time. We can have a good discussion. So, may I audible? Hello? Hello? They all must be muted, so ask them to raise their hands. Yes, sir, audible. Okay, fine. एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी ग्रुप में इसमें नहीं है जी नहीं आप सोशल आदमी नहीं हम बहुत गए सारा सोशल मूवमेंट पे कराए अब क्या नहीं है इनके हम कहाँ यहीं रहेंगे ये इनको यहाँ रहना चाहिए फिर भी यहीं रहेंगे यहाँ अभी रहने दीजिए उसके बाद दोबारा ले जाओ और इनको हर जगह इस्तेमाल सोशल ओके who else sir just to take the name that who will speak Dr. Avdesh Pratap okay मैडम आपका मीना कुमार Atul Jain. Immediately after Meena Kumar. आप भी बोलेंगे ना कुछ लास्ट में फिर बोलेंगे हम कहाँ हैं हम जहाँ कहाँ अभी अभी कहाँ है हमारा कहाँ नाम है हम भी घूमते रहते हैं आप भी घूमते रहते हैं चलिए ओके so let us start with this and I think let us start from the legal issues. yes, sir. So Dr. Avdesh Pratap ji he is a famous water law expert and he is going to talk about river space restoration in terms of legality, whatever jurisdiction may be, and how people are going to accept that. Here I have to add a little bit hard remark that Banaras is famous for following only one law, not to follow any law. And this is already recorded in the literature. Since 45 years I am doing the same thing, all this recording. So that is another problem. So now we will request you some remark you can give that how this law to be really implemented and people should realize. I have already, sir. So some remarks from okay, Dr. Singh, please go ahead. ये इधर करिए, ये ऐसे कर मेरे सामने लाओ भाई. That law was ये मुझे बोला है. आप विश्वनाथ जी ने जो लॉ बनाया था वही लॉ चलता है. वही चलता है. वही कहाँ ले जा रहे हैं? नहीं वो मेरे पास मेरे सता है जैसे भी है सर.
Hello. Hello. I, Dr. Avdesh Pratap. My voice is audible before you? Audible. Hello. Okay. Yes, audible. Okay. Now I start my presentation, but it is not with the video. I will present my discussion because it is not just for slide making. It is for social and legal implications. Then yesterday I visited River Assi by the help of District Judge Varanasi, and I found that the condition of catchment as well as river bed is heavily encroached. And when I try to get some photographs, then I was opposed by a huge gathering. And if security was not there with me at the time, I think they might push me to the river Assi, and nobody will come to rescue me. This is a very worse situation which was experienced by me yesterday. Now I will put some solutions, but before putting some solutions, I want to discuss the legal position and Vedic position of the rivers. Then I will discuss some solutions which might be fruitful for the rejuvenation of river Assi, and the position of Varuna is little worst, and able to rejuvenate river Assi, then it will be more easy to rejuvenate river Varuna. The situation is very much worst in all the tributaries in India, I found, but Assi is very badly and heavily encroached. Total catchment area is heavily encroached, even river bed is also encroached, and water is stopped by making temporary embankments. And after making this type of embankment, silting process, natural process is there, and the river and the area will encroached by permanent encroachment. Now I found some places where temporary encroachment is there to convert it as a permanent encroachment. Now I want to give some natural ecosystem of river, and one very important term is known as floodplains. To rejuvenate or for the life of river, floodplain restoration is must. Without restoration of floodplain, we cannot continue our river to life. And if the situation is the same in next 25 years, most of the rivers of our country will die. There will be no water in our rivers. Therefore, it is very necessary before people to give them literacy, water education, and water awareness. And there are so many other points which will be discussed by me in the last leg of my lecture. Firstly, I want to start to give some specific meaning of the term floodplains. Only 15 minutes time for Definitely, sir, I will cover. because we have to follow the text. Okay, sir. We are not going to the Okay, sir, only 2-3 minutes more I want. Floodplains, basically, it is the term which is developed by British common law and Roman law. Floodplain is a place of natural river ecosystem which must be full of biodiversity and wildlife. Because by way of this system, it is the natural way not to encroach by manpower. But after independence, most of the rivers were encroached for the purpose of public and private, both the purposes, for agriculture, for residing purpose, for dairy purpose, for many purposes.
And now I want to discuss the British system of security of this place. In British Gazetteer, this land is defined as river land, and no one was allowed to enter in this particular land, and penal provisions were there to encroach this land. If we go through with Rivers Conservancy Act, then we will find that there are so many penal provisions to enter into this land, and heavy fine will be imposed to any person who enter or encroach this land. After independence, water was neglected, and till 1980, water was covered with Ministry of Irrigation. In 1980, a separate ministry was introduced, Water Resource Ministry, but not seriously taken, and very few budget allocation was there to look after water management of the country. Till date, allocation of budget is not sufficient for our water management. It is a very, very big problem to manage our water. I request Prime Minister by way of letter that budget allocation for water management in the country must be enhanced to 5 times, and some national or international level university must be developed in our country to water education, water awareness and water literacy programs must be there. In Mann Ki Baat in June, PM so will to initiate fund for water literacy and awareness. It is very must. Now I want to discuss that the term is developed this time by National Mission for Clean Ganga, and I discussed in IIT Kanpur with Professor Tare last 2 months before, and this term is modified as river space. So it is river space now. And like natural flow is modified to environmental flow, just like floodplains is modified to the word river space. Now, in this session, we are talking about river space restoration. When we are talking about river space restoration of river Assi and Varuna, difficulties are there, but I will give solution. How can we remove these difficulties? Now, I would like to share some contents of Rig Veda relating with river. In Rig Veda, rivers are defined like in Nadi Sutra, Nadi Stuti Sukta, that is, one is Ganges, Yamuna, Saraswati, Sutudri, Purusani, Asikni, Marudvar Vardha, Vitasta, Arjikia, and Susoma. Sutudri is now known as Satlaj. Parusuni is now named as Ravi. Asikini is Chenab. Visata is Jhelum. Marudvar Vardha is Sindhu. And Arijikia is Narmada. 10 rivers are most important rivers according to Rig Veda. Now, in British period, I am now start the legal situation from British period. In British period, water was commanded by central command, and army was responsible to command the water. After some years, public works department was constituted to look after water. Then after irrigation. And two historical examples are before us in North India and South India. One is two most important engineers, Colonel Cotton and Colonel Curtley. Colonel Curtley was chief architect of series of
Ganga canals, Madhya Ganga, Upper Ganga, and one more Ganga. 3 canals were initiated from river Ganga. I am right, sir? Very nice. Colonel Curtley was there, who designed river canals, the net of canal in North India. Likewise, Colonel Arthur Cotton was the chief architect of water diversion in South India. The 2 main architects of water diversion, but Colonel Cotton accepted that we learn water diversion from Indian engineers. He thanked Indian engineers in his written statement that we are thankful to Indian engineers that from the literature of Indian system, we are able to divert water in that particular way. He has written, Colonel Cotton. One thing more, before, and they developed a net of irrigation work because one time in 1770, revenue rights were given to Britishers by our Nawabs. They provide them some annual money, 20 lakh, 25 lakh per annum, and revenue were collected by Britishers. Then they are very wise people. They know that irrigation is the main source of economical development in India. Then they started work to get better crops, and seasonal crops were there, and rain were only rain-fed irrigation agriculture was there. Then they developed irrigation-fed fertile area, and they were successful because in South India and North India, both sides, they developed the canal system. And before this system, in 1824, they started to construct embankment to store water for the purpose of irrigation. And sir, 2 minutes more, sir, I want 5 minutes. Okay, sir. Now, okay, sir, only 5 minutes, sir. Now I want to discuss the legal position. Basically, prior to Government of India Act, water was in central command, but by the introduction of Government of India Act, water was diverted to provincial list as well as in central list. When we draft constitution, we copy the same provision to water, and water was given state list entry 17, union list entry 56. But Ambedkar saw very intelligently provide that water is actually in under entry 56 central list, and this system is not established till date. I try to establish by way of reference in Supreme Court. I file a reference, then it will be clear after some year that water actually is in central command in India according to our constitution scheme as well. Now, after I want to give some solution to rejuvenate Assi, and when we want to rejuvenate Assi, first of all, 3 ministries are necessary to work together for the rejuvenation. One is Ministry of Jal Shakti, second one is Ministry of Irrigation, and third one is Ministry of Panchayat Raj. Without the combined effort of these 3 ministries, we cannot rejuvenate Assi at any cost in Banaras. And in local level, municipal commissioner and other authorities like irrigation department and others must work together with technical assistance of IIT BHU, and we have 7 IITs to consult on water with the Ministry of Jal Shakti, Government of India. But for the rejuvenation of Assi, technical assistance of BHU is sufficient, and public participation and public assistance is also very, very important to rejuvenate our river Assi.
because without public participation, we cannot complete this task at any cost. And the most important thing, finally, you already told that political will. We have MP who is Prime Minister of the country and who has the willpower to convert our water bodies to pure water bodies, and he is very willing to conserve water and to store water and to take care of water. When he was fighting for PM post first time, he emphasized the conservation of water, and especially for Ganga, and Assi is the tributary of Ganga. Then if we approach our Prime Minister as a MP of this Banaras, then definitely we will be able to rejuvenate Assi. And when we will rejuvenate Assi, it will be very easy task to rejuvenate River Varuna. Thank you very much, sir. Okay, thank you very much. That was a good narration about all these issues, mostly emphasizing historical perspective started from the Madhya Pradesh Rigveda, then suddenly coming to this period. There are huge literature and the Quranic literature in between. So we have already reviewed these things, and history department has written several documents about that. The most important thing related to this is that what we call in a local colloquial dialect, you can say, and satire, goody idea, nothing to do, and then at the end say ha ha ha. Okay? The last wish of Mahamana, this is all, whatever I am saying, it is published, written. I am part of more activist like that. So let me say that Mahamana's wish was that what BHU can do for Banaras. We have acquired these 9 villages destroyed. Most of them they followed something wrong path, nothing like that. What BHU can do? Till today, BHU has not produced a single volume about Banaras. Okay? That's why I had to resign when they formed a committee. Okay, Rana Singh will be like this, he has done. And then in the first meeting, before the Vice Chancellor, I said, goodbye to you. I am doing whatever I want. I don't need money, I need people, that's all. So this is one example that how this whole gap is there. How many of professors going real in the field? I remember that is the late 70s and early 80s when we were going to count. First time in the history, 1987, I published a big article, in fact, saying how many ghats. There was nothing in the record how many real ghats. What do you mean by about ghats? Even a scholar like Dinah Ek, 1982, with the famous book on Banaras, about ghat, if we are here 5 or 6 persons, then it is 5 persons, 6 persons, not about 5 persons. What do you mean by about? When you type in scientific term. And that clearly indicate how the things are made. 2 things that came from your lecture. The first thing was that whatever mythologically are based on the theological interpretation of the text, dealt with very high moral values. If you do like this, then this will be the sin like this, you have to remove like this. This has all gone. And during the last 40, 50 years we are here. And mostly I am going in the field, whatever you have seen. Good that you have not been beaten and people have just Yes, said. I was. But the situation is very rightly and painfully you have mentioned this. That is the situation. Who has created this situation? We have created this situation. You say Prime Minister is here, people is here, and you are talking, we, Prime Minister only, we say, I want to make it Kyoto. First it was Barcelona. Before that, Santiago de Compostela. What is concept? Banaras is Banaras. Solve it like this. Why you are talking all these matters? And then those people constituted 10. I am telling you the real story so that you can link and further. Again, you can comment and give suggestion. A committee has informed 9 persons with BB Bache and De Bache. They have gone for 1 week enjoying Kyoto. None has seen how to maintain sewerage, how to do sanitation, how the river is pure, how that water you can test there in Kyoto, nothing. And then they have compared Sarnath with Nara. Oh, there is Nara, here is Ganga, here is Cho river, and all this nonsense. None, they come back, and just after about 4 or 5 months,
Shinzo visited Banaras. Prime Minister Japan visited Banaras. He asked this question before Narendra Modi. Could you please arrange a meeting that 5-6 persons who have gone there and got the training, what they have done after this in Banaras? None was here. And they said they have been transferred, that there is no word I have studied in Japan, there is no word in Japanese when you talk in planning, word transfer is no word. But then 2-3% have to somehow to convince what is transfer. Because once you have done this, you are trained, you'll be promoted here. Nowhere you have to go until you can finish those whole tasks. No way. Here none were there and none were expert. This is the one situation. What Prime Minister can do if we are not ready. And last thing, the most important thing you said, two very important, that political will. This is completely nonsense talk. Political will, what do you mean by political will? We are all political. We are part of the whole thing. We are not doing this. And then we say political will, then the government we say. And when you are comparing, that was the last wish of Prime Minister Kyoto. Kyoto is, sorry to say, Kyoto is not maintained by any government institution. Kyoto is maintained by public. And authorities from administration, they go, please give me a little bit task. We want to highlight ourselves. This I am saying practical, I studied Kyoto, I was in Banaras 40 years. And I never been invited. And after 1 week, I wrote to them, then they say, oh, come on. So I have gone there. So this is the story when you are talking about this public participation and how to link with the administration. That is the thing. And the last thing I have to say, but jokingly, I said, but this is already written. You read Bharati and Harishan, the whole corruption of this given. Even this Banaras Hindu University, this is all based on the political things. That's how it will be constituted. So if you know all that different type of diagnosis of body, then only you can say, here is a prescription. And if you say only good things, then which prescription you want to say? What is the value of your so many good things you have said? It is not going to be implemented. Who is responsible? In the record, municipal corporation record say about 64 ghat. It should never be less or more, that will be always 84. According to full Sanskrit literature, and first time in 83, simple exercise, go by boat, reading the text, one by one, full day, enjoy something, picnic, and then plot it and we prepare the map. But that has no value at all. So that is very important aspect in terms of discussion. So who will do, how will do, and next we are coming to the speaker. I think we have given sufficient little bit pinching things. He started from legality. And that is another thing, let me say, with all pain and apology, we are sick of always citing Veda and Purana. Let me say very frankly, 90% of us never seen the original source. Never seen what is called critical edition. Whatever Khomchawala selling Veda, whatever Gita press we have gone through, never reading the original one. And this task has been done by many great European scholars. Only the thing we are talking about, Banaras and Kashi Khand, that took 12 years to edit, and 3 parts published, 5 professors dead, and 2 more parts to publish on Banaras not published. Because nobody else in the world is going to take this. So that is another thing, we have to get those real thing and say something. So that very good. And I think after all this push-up, you can easily link with the traditional wisdom and knowledge. So may I now invite Minaji to please, and this we have to, please do it. Yeah, I said my year. So just to introduce you, that if I were to take the first word of your name, Meena means mean, and that is the fish. Okay? And you know that simple thing, if you follow this Nagda Sutra and other, then you can say that if you want to clean the river, first you have to worship fish. And if fish is okay, river will be okay. If fish is not okay, no river can be okay. So that is the way your topic is going to very much fit in theologically. Your name, Yatha Namo Tatha Guna.
सर नमस्कार। सर जैसे कि अभी चर्चा हो रही है कि ट्रेडिशनल विजडम की जब हम बात करते हैं कि भारतीय समाज ने अंतर्राष्ट्रीय अनेक जो अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत हैं उनको भी झुठलाया है, क्योंकि हमारे रीति रिवाज, हमारे तीज त्योहार, हमारी धारणाएं, हमारी जो जो संस्कार हैं वो उनके हिसाब से नहीं बैठती है। यहाँ का जो समाज है वो हमेशा से ये रहा है कि अपनी जिम्मेदारी स्वयं निभाना। हमारे अलग अलग जो तीज त्योहारों की जब हम बात करते हैं, अभी सर ने जैसे बताया कि मछली की ही बात करते हैं, पूरे देश में ऐसी परंपराएं रही हैं कि बारिश के जो 4 महीने होते हैं उस टाइम में मछुआरे मछलियां नहीं पकड़ते थे, और उससे पहले भी वो जलाशयों की साफ सफाई करते हैं, बारिश से पहले भी और बारिश के बाद में भी। यहाँ तक कि इस परंपरा को मध्यकाल में आते आते इस्लामिक जो भी आए थे उन्होंने भी इस चीज को फॉलो किया। यहाँ तक कि कश्मीर में ऐसी दरगाहें हैं जहाँ उनके पास में जो तालाब है उस तालाबों से मछली पकड़ने की मनाही है, और यदि उस तालाब से कोई मछली पकड़ना तो क्या वहाँ मछली खान के उस दरगाह में भी कोई जा भी नहीं सकता है। तो ये सब जो परंपराएं जो थी, और उससे पहले जैसे कश्मीर की हम बात करें, डल और वुलर लेक की बात करते हैं, तो मछुआरों को यहाँ तक कि वो कभी किसी दूसरी अलग से उनका ये निर्भर नहीं रहते थे कि हमारी झील की कोई और सफाई करे। उनकी अपनी परंपराएं थी कि बारिश से पहले इसकी बीड़ निकाल दी और वो बीड़ को किस तरह से काम में लेना है, और वो बीड़ उनके पशुओं के काम में आती है। जब बर्फबारी होती है तो उसको सुखा के रखते हैं और वो उनके पशुओं के लिए दूध बढ़ाने के काम में आती हैं। वहीं पे जो एक फ्लोटिंग जो फार्मिंग है उसमें भी वो खाद के रूप में काम लेते हैं। तो समय समय पर उनकी जो वो जलाशयों की साफ सफाई होती रहती थी, और वहाँ पे जो जलचर होते थे वो भी अच्छे से पनपते रहते थे। यहाँ की जो जल था वो प्रदूषण मुक्त रहता था। ऐसे ही जब हम बात करते हैं कि बारिश के बाद की जो पहली गाद होती है, चाहे वो नदी हो, चाहे वो तालाब हो, चाहे वो कोई झील हो, उसके आसपास में भी समाज ने ऐसी परंपराएं, ऐसे तीज त्योहार पूरे देश में बने हुए हैं। यदि हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार की, तो छठ पर्व, और गोवा की कोंकणी क्षेत्र में बात करते हैं तो एक ढिलोत्सव, और वहीं जब हम राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, हरियाणा की बात करते हैं तो कार्तिक एकादशी ऐसी है कि उस पूरे देश में बारिश के बाद का ये पहले त्योहार है कि यहाँ पे छोटे छोटे समूहों में महिलाएं, बच्चे, पुरुष सब कोई जाते हैं और मिट्टी के ढेला निकाल के पाल पे डालते हैं। यानी बारिश के बाद में जो पहली जो गाद किनारे पे इकट्ठी हुई वो निकाली और पाल पे, एक तो गाद से सफाई हुई और दूसरा पाल को मजबूती प्रदान हो जाती थी। तो ऐसे ही बारिश से पहले की जो परंपराएं थी वो पूरे देश में थी, जिससे कि बिहार में उसको गौम कहते हैं, गोवाम भी कहते हैं, और मध्य प्रदेश में उसको हलमा कहते हैं, और साउथ में उसको धर्मादा कहते हैं, तो फिर राजस्थान और हरियाणा में उसको लास भी बोलते हैं। ये सब तो थी समाज एक विकेंद्रित जो प्रणाली थी, यानी सब कुछ अपने हिसाब से उनको करना, वो किसी पे डिपेंड नहीं रहता था। जब समाज इतना निर्भर था, इतना सब वो करता था, उसकी कब सफाई करनी है, या जब भी कोई जलाशय की नुकसान हो जाता था, टूट फूट हो जाती थी, तो वो ये, क्योंकि यदि उनके पास पैसे थे तो आपस में कोई जिस समर्थवान कोई व्यक्ति होता था उसके पास जाते थे कि आप ये ठीक करवा दीजिए। जैसे कि राजस्थान में बहुत सा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हिमाचल में एक गीत है, कुंजी खुदाया कुआ बावड़ी, कुंजी बंदाया समन तालाब। यानी कि जब भी कोई वहां पे एक वाटर बॉडी को उसको बनाता है, उसको करता है, उसको समाज में एक सम्मानित स्थान दिया जाता था, और जब उसकी कोई मरम्मत करा रहा है तो उसे एक देव के समान उसको जाना जाता था उस समाज में। तो ये हर कोई चाहता था कि बारिश से पहले बाद में जहाँ कोई ऐसे नुकसान हो जाता था तो वो सबका संज्ञान से ही सब काम हो जाते थे। वहीं हम बात करते हैं रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, तो अभिलेख जो हमारे जो सोर्सेज जो हैं वो इतने हैं कि उसमें बाकायदा बताया गया कि कैचमेंट एरिया पे, यानी किसी भी जलाशय की किसी ने बनाने की अनुमति ली तो उसके साथ में गवर्नमेंट ने एक मेंशन किया है। ये मैं 17वीं शताब्दी का एक रिकॉर्ड्स का बता रही हूँ राजस्थान के। वो बताते हैं कि यहाँ पे ये जो कोई कुआं बनाएगा या तालाब, उसका जो कैचमेंट एरिया है उस पे वो उसके नाम से जारी किया जाता है, लेकिन एक शर्त ये है, यदि उसको व्यक्तिगत रूप से काम में लिया जाता है या फिर बाद में उसको कहीं बेचा जाता है तो उसे वापस सरकार उसको ले लेगी, क्योंकि वो एक जलाशय के रूप में पूरे समाज के लिए, और पूरे समाज का जो काम है उसको व्यक्तिगत रूप से किसी बसावट के काम में नहीं लिया जा सकता। तो इस तरह साथ ही एक ऐसा भी रिकॉर्ड्स है, अभी हम लोग बात कर रहे थे, रिकॉर्ड्स दिखा रही थी मैं सर को, 1770 ईस्वी का एक रिकॉर्ड्स मिलता है, अभी देखिए, उसमें बताते हैं कि कैचमेंट एरिया में यदि कोई बाकायदा बेवजह मिट्टी निकालता है,
क्योंकि पानी का जो फ्लो आएगा उसमें कहीं भी कोई किसी तरह की रुकावट आती है, गंदगी आती है, तो 1770 ईस्वी में कि 1000 रुपए का जुर्माना यदि कोई ऐसा करता है तो 6 महीने की कारावास उसको होगी। और यदि ऐसे ही बसावट के टाइम में जब गांव बसाए जाते थे तो उन्हें बताया जाता था कि एक कहाँ कौन सी जगह आपके लिए सबसे अच्छी होगी, तालाब होगा, उसके पास कुएं होंगे, और फिर यहाँ तक कि तालाब के बीच में भी बेरी होती थी, तो कि पहले तालाब का पानी काम में आया, फिर कुओं को रिचार्ज किया तो कुएं का पानी काम आया। जब दोनों का पानी खत्म सा हो जाता था तो बीच में जो तालाब के पैंदे में बेरी बनी होती थी वो काम में ले लेते थे, और जो वहाँ की जो गाद है वो सूखती थी वो कुम्हार ले जाते थे, या फिर जो किसान लोग हैं वो अपने खेतों में उस टाइम में डाल देते थे। तो ये इस तरह के जो हमारी एक विकेंद्रीकृत जो प्रणाली जो थी कि हम अपनी जिम्मेदारी हम स्वयं कर सकते हैं, और हमारे ऐसे तीज त्योहार जो होते एक यानी उत्सव के रूप में पूरा जो काम है वो पूरा समाज कर लेता था। और जो एक जल प्रबंधन भी था, साथ में ही जल की निर्बाध उपलब्धता के लिए भी समाज ने अपने अपने सरोकार बनाए हुए थे। धन्यवाद। प्रोफेसर साहब आपकी बात मीना जी ने तो बहुत अच्छी तो अभी टाइम तो अभी बोलेंगे आप, अभी तो आपका समय था 5-7 मिनट हो नहीं, कई बातें हैं इसमें जो जुड़ी हुई हैं। काशी के आपका 3 मिनट अभी बाकी ही था, तो वो 3 मिनट आपकी आज्ञा से मैं जोड़ देता हूँ अपने बड़े भाई के आस। अरे हमको बिना आपके आशीर्वाद के। एक तो ये बात है कि काशी की जो बात करें, 1822 में जो मैप यहाँ का प्रिंसिप बनाता है, 32 में छपता है। अभी उस पर डिटेल एक अध्ययन हुआ, डीएससी थीसिस एक मैप को लेकर हुई है, योगेंद्र फ्रॉम जर्मनी। उन लोगों ने ये किया कि उन चीजों को आज के संदर्भ में एक एक चीज जोड़ के देखा गया। 2 चीजें बड़ी स्पष्ट हुई हैं प्रिंसिप के, और भी रिकॉर्ड, पता नहीं आपने नाम सुने हैं कि नहीं, जेम्स प्रिंसिप का नाम सुना है कि नहीं। आपकी जो घड़ी है, जो समय है भारतीय समय का, उसी ने फिक्स किया। वही था जो ब्रिटिश जमाने में कमल के फूल और लक्ष्मी का थोड़ा सा सिक्के में डलवा दिया। सो मैनी थिंग, ब्राह्मी लिपि उसी ने पढ़ा जो आज तक अभी उसी का इंटरप्रिटेशन चल रहा है, कोई नहीं। ही वाज ग्रेट मैन, और 40 में एक दिन कम था तो मर भी गया। काशी वाले इसको पत्थर फेंके, इसीलिए उनको कहा कि ये परंपरा है हमारी, है ना। गीत जैसे आपने सुना होगा, मधुर मनोहर अति सुंदर, हुआ था ना उद्घाटन में, सुना होगा, हम तो देख रहे थे इस पर। तो उसका अगली एक प्रैक्टिकल है क्यों उड़ रहा है, अच्छा कैमरे में लगा, वो तो लोग पानी पीने लगे। तो वो है कि मधुर मनोहर, ये पैरोडी है, ये लिखा छपा हुआ, तो मैंने प्रूफ दिया। मधुर मनोहर अति सुंदर, यह लतखोरों की राजधानी। और शंकराचार्य से लेके आदि शंकराचार्य 8वीं या 9वीं जो भी काम करिए, दयानंद सरस्वती तक किसी का भी नाम बता दीजिए, विथ ऑल प्रूफ मैं बता सकता हूँ, पिटाई जरूर है। लेकिन किसी ने भी इसको सीरियस नहीं लिया। जैसे जो बात ये कह रहे थे कि इसके बाद लोगों ने बचाया, और ये थोड़ा सा इन्होंने हिंट दिया और सबने फिर उस तरह दिया। तो एक ये भी पक्ष रहा कि जो आप ये कह रहे हैं हिस्टोरिकली, ये मान्यता ब्रिटिश पीरियड तक रही है। और यदि अकबर के अकबरनामा से लेकर के यदि रिकॉर्ड्स को पढ़ें, पर्शियन रिकॉर्ड्स को पढ़ें, इस पर भी काम हुआ है, तो उस समय दुनिया के नज़रों से जो देखा जाए, जो कई यात्री आए हैं ब्रिटिश, उन लोगों ने लिखा कि इतना सुंदर और व्यवस्थित नगर जल के दृष्टि से कहीं दुनिया में नहीं। 1822 की जिसकी हम बात कर रहे हैं, 1832 में फिर रिप्रिंट होता है, उसके आधार पर हम लोगों ने काम किया इनके निर्देशन में। तो मैं प्योर कल्चर वाला आदमी हूँ, ये प्योर हाई टेक वाले हैं, तो दोनों मिलके काम करते हैं। एनीवे, हम दोनों लोग बागी भी हैं, तो रेयर बुलाए जाते, पीके सिंह पुराने वो है इसलिए नहीं तो बुलाए, सुनता नहीं कोई बात। तो उसमें जो एक बात जो कहना ये चाहते हैं कि जब तेज बारिश होती थी तो यहाँ पर 54 कुंड थे, जो इस समय 26 हैं। 26 में से 4 केवल एक्टिव हैं, से जो है दूसरे कंडीशन है, लेकिन 26 एग्जिस्ट करते हैं 54 में से। और 54 में 5 स्ट्रीम जो है जुड़ी हुई थी, और जो बारिश हुई ओवरफ्लो हुआ तो पानी फैला, फिर एकाएक जो पानी हटा ऐसे जैसे खींचा और शहर साफ हो गया। दुनिया में जब मलेरिया कॉलरा हो रहा था बनारस में उस वक्त नहीं था, सिटी में नहीं था,
क्यों नहीं था, तो एक बार फिर उसमें जो है वो पेंटिंग किया है जिसको माइक्रो लेंस से हम लोग बढ़ा के देखे तो मानसरोवर के राजहंस प्लाट है और अद्भुत नील कमल प्लाट है बनारस में, जो आज सोच ही नहीं सकते। सब इलीगल कैप्चर हो गया, कहाँ है, कौन मिनिस्टर, कौन आया, कौन लाया, कोई माने ही नहीं। एक पक्ष। दूसरा पक्ष जो आपने कहा कि किस तरह से बॉलीवुड इफेक्ट में, मेटलिज्म में, कंज्यूमरिज्म में, इंडिविजुअलिज्म में जो इज्म जोड़ ली, जितना नेगेटिव जोड़ना, हमने ओरिजिनल ज्ञान खत्म कर दिया। जैसे आपने छठ की जो बात की, उसके महान ऋषि यहाँ बैठे हुए हैं, मिथिला परंपरा के छठ के हम लोग तो पहुंच उसके। छठ को यहाँ कहा जाता था, मैं ये बात कर रहा हूँ लेट 60s से, जब मैं यहाँ स्टूडेंट 67 में आया था, तो कहीं जाइए कोई लोग 2-4 लोग शायद छठ करते थे, गए देखे रहे तो पीछे से साला लगता है बिहारी है साला। आई हैव नोटेड इन माई आर्टिकल, और वो इतनी चुभती थी कि क्या हम भारतीय नहीं हैं, हमको कैसे आपने बिहारी का क्या मतलब। और ये बात काफी लंबे तक चली। उसके बाद इसका बिजनेसकरण हो गया। उसके बाद जब हमने इसको 10 साल के अध्ययन से, जिसमें मेरे नेशनल साइंस फाउंडेशन, नासा इत्यादि का सपोर्ट रहा, इस तरह का काम हम लोग किए हैं 7 साल तक। जब रिपोर्ट बनाई गई तो कोई छापने को नहीं तैयार, ये सब बकवास है। और उसी के लिए बुलाया गया मैं इटली की, इस पर आपको 2 दिन लेक्चर देना है विदाउट स्लाइड से, 5-5 घंटे का प्रोग्राम है। इस तरह के स्पेशलिस्ट बुलाए जाएंगे। क्या पर्व के जरिए हम पूरे ऐसे को बना सकते हैं शहर को? फिर इटालियन में, जर्मन भाषा में छपा, बाद में हमने तो इंग्लिश में लिखा, मुझे नहीं आता, फिर वो हमने अपना इंग्लिश वाला करके लोगों को बांटा। तो ये जो है मैंने मूल चीज को छोड़ दिया। अब मैं एक बात और जानकारी के लिए वो आपसे जुड़ा हुआ है, ये कई ऐसे पर्व हों जब हिस्टोरिकल लिटरेचर पढ़ेंगे, जैसे मर्शिया इलियाड है, तो हम लोग तो प्योर साइंस पढ़ते हैं ना, साइंस वाले साइंस पढ़ेंगे, आर्ट्स वाले आर्ट्स से आएंगे, वो कहेंगे वेद में लिखा है तो तुम क्या करते हो, यथराष्ट्र पूजयंते, तो जूते से मार रहे हैं बीवी को, यही है ना। अभी कल आ रहा था इसका पूरा प्रसंग। तो खाली आदर्शवाद से तो नहीं चाहिए ना, फैक्ट होना चाहिए। तो सूर्य की पूजा माँ की गायत्री, माँ का स्त्रीलिंग। आप लोग जो है रिमोट सेंसिंग के हैं, मैं इंटीमेट now it is like है आ रहा। अच्छा ठीक, तो यहाँ आइए तो दिल से दिल जोड़ेंगे हम, टेक्निक से नहीं जोड़, इसे टेक्निक जानते हैं, ऐसी नहीं बात है। तो ये सूर्य की महत्ता को सबसे पहला इस सबको मिला दीजिए, लाखों ले लिए जो हिस्टोरिकली आपने शुरू किया ऋग्वेद से, नादे सुख से शुरू किया आपने, कई चीजें जो ये सारे जो हैं अध्ययन से ये पाए गए कि सबसे प्राचीन सभ्यता, ये केवल वो प्रशंसा वाली नहीं, झूठी प्रशंसा की, तो वो शुरू होती है सूर्य को माँ के रूप में। इलियाडे एक ऐसे स्कॉलर हुए हैं जो करीब 15-20 भाषाओं पर कमांड था। 2 ही आदमी ऐसे दुनिया में माने जाते हैं, राहुल संकीर्तन, मर्शिया इलियाडे, नाम लग रहा है औरत का है पुरुष ही। 7 साल नंगे हिमालय में उसने साधना किया इलियाडे ने, और उस समय लिखता है 54 की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय लिखता है कि एक टाइम आएगा जब साइंटिफिकली ये बात मेरी प्रूफ होगी, आज भले ही कंट्रोवर्सी, कि सूर्य की उस महत्ता को जल से जोड़ के जीवन की जो बात की गई है सारे इन शास्त्रों में, ये जो है बाद में साइंटिस्ट बैठ के लैब में इधर से इधर किया करेंगे। ये तो थी परंपरा, हम टूट गए, आज भी नहीं जोड़ रहे हैं। तो लेट मी जस्ट कंक्लूड दैट आई वाज सो मच इंस्पायर्ड by these two coming from ऋग्वेदिक, that is all you are talking, मेरे हृदय से कर, इसलिए हम ही ज्यादा बोले जा रहे हैं। तो मुझे ऐसे कर देंगे तो हम रुक जाएंगे क्योंकि मुझे लगा कि बड़ा ही ऐसा फिर लोग यहाँ बोल रहे हैं, ये बात है। मैं एक लाइन केवल कोट करूंगा, ही इज ए लिविंग लीजेंड इन थियोरेटिकल फिजिक्स, नाम है फ्रित्जोफ कापरा, और साइंस के किताबों में ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो आप सभी जानते होंगे हॉकिंस की, उसके दाएं एक ऐसी भी किताब है जो उनके पहले आई थी और आज भी उसके 20 भाषाओं में ट्रांसलेशन है, माफ कीजिएगा हिंदी में नहीं है, लेकिन इंडियन एडिशन 200 रुपये में है। मैं एजेंसी नहीं लिया हूँ, प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। किताब की टाइटल है टाओ ऑफ फिजिक्स,
ये पहली किताब थी, तो 3 पार्ट में बटी है। पहले प्योर फिजिक्स को बताता है कि कैसे सब्जेक्ट, ठीक है। बर्कले में लॉरेंस लेबोरेटरी का वो जनक रहा। इस किताब के छपने के बाद ही रिजाइंड एंड ऑल अर्न हिज मनी जस्ट ही फाउंडेड स्मॉल इंस्टीट्यूट का नाम है इको लिटरेसी, जिसकी इनडायरेक्ट आपने भी कुछ मेंशन की कि लिटरेरी उस तरह से ज्ञान वो नहीं है। उसकी मैं लाइन एक कोट कर रहा हूँ, उस किताब की अंतिम लाइन में कोट कर रहा हूँ, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं रहता, लगभग वही होगा। Science does not need mysticism. Mysticism does not need science, but we human beings need both. पूरी किताब इसी पर है। 3 जो चैप्टर हैं, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, ताओइज्म, पैरेलल दोनों का ऐसे निकालता है। प्योर साइंस के कैलकुलेशन, प्योर वो, और कहता है कि हम नहीं जानते, हम तो नहीं इंडियन लिटरेचर जानते हैं, ये स्क्रिप्ट और डिजाइन से मिला के आप खुद सोच के देखिए कि कैसे हम कह रहे हैं कि साइंस अलग है और ये अलग। तो यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि इस क्वेश्चन में, और इन दोनों को तब जोड़ेगा जिसे हम गांधी जी के उसमें लें, यदि इंग्लिश में लें। एक आदमी ऐसा भी हुआ है जिनको भी लिविंग लीजेंड कहते थे, जो गांधी जी के आश्रम में 13 साल तक उनके साथ हुए हैं, अर्नेनास। ही इज नोन एज फादर ऑफ गांधीयन थॉट। दैट टाइटल वाज गिवन, फादर ऑफ गांधीयन थॉट, and that man introduced a new philosophy, deep ecology. उसने चैलेंज किया कि ये जो इकोलॉजी है, शैलो इकोलॉजी है, एक पत्ती का अध्ययन करके 1000 गुना 2 गुना मार लैब में कर करके ये, तो यहाँ तो जुड़ा नहीं। तो ये जो थॉट है इस तरह के, इसको प्रैक्टिकल मैन जिसे हम कहते अवेकनिंग, तो जो टर्म है वो है सेल्फ अवेकनिंग, एस कैपिटल, स्वचेतना। तो थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, आपके उसमें 3 मिनट आपका बचा, 3 मिनट और एक्स्ट्रा जोड़ दिया, लास्ट में मैं नहीं बोलूँगा। अब मैं निवेदन करता हूँ श्री अतुल जैन जी से, कनेक्टिंग विथ पीपल फॉर रिवर हेल्थ रिस्टोरेशन। इनका भी नाम जो है बड़ा अद्भुत है, ये अतुलनीय है, इनक्रेडिबल इंडिया, और उसके बाद जो अतुल जी है, हमारे BHU में एक ही अतुल जी है जो सबसे बड़े खुराफाती माने जाते हैं। तो जहाँ भी इनको बुला दीजिए, गंगा पर बुला दीजिए, तो ये भी सेमिनार चौपट कर देंगे वो। हाँ, उनका जाएंगे, उनके साथ कुछ भूत पिचास आएंगे, तो नाम अतुल त्रिपाठी है। मैं इसलिए कह दिया, पहले जो है सबसे पहले पूजा आप गणेश की करते हैं ना? जी हाँ जी, आप कीजिएगा, जी नाम नहीं है, जरा गौर कीजिएगा, शास्त्रीय रूप से पहले गणेश की पूजा नहीं होगी। सही सोच के बताइए किसकी करते हैं? हम आमतौर पर देखिए, मैं वैसे जैन हूँ, हम लोगों का हाँ, मगर हम लोग फिर भी पहले जो बात करते हैं उन दुष्ट गणों की बात करते हैं, तुम दूर रहो, तब गणेश के बुद्धि देके पवित्र करो। तो जो रियल शास्त्रीय विधि से पूजा कराएगा, विशेष कर्मकांडी, तो 2 मिनट कहेगा कि चुपचाप मान लो, आप समझेंगे ऐसे बका नहीं रहा है। वो भूत पिचास जितने रिलेटेड डाइन सब उनको दूर कर, सबको करा, बस मान जाओ, रुक जाओ, तब गणेश आएंगे। तो इसलिए मैंने क्या इनक्रेडिबल मामला है उसी। सर चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर राणा जी, आपने इतना स्कॉलरली इंटरवेंशन दिया है। वो इंटरवेंशन क्या, वो हम लोगों को डिरेल कर दिया आपने अपने टॉपिक से। अब इसमें वो 80 घाट और ये ट्रिब्यूटरीज वगैरह जो है, मैं उसको डिरेल करना जो कह रहा हूँ, मैं नहीं, मैं उसको एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पे कह रहा हूँ, वन। और मुझे ये लगता है कि आपने इस टॉपिक में जो 1-2 शब्द भी कहे, आपने तो वैसे बहुत सारी चीजें दी, इतना शानदार वो दिया, लेकिन आपने एक बीच में सज्जन आए, उनको कहा कि हम रिमोट सेंसिंग वाले नहीं, हम इंटीमेट सेंसिंग वाले लोग हैं, दिल से दिल की बात करते हैं। इनफैक्ट मेरा विषय भी आज आप देखेंगे तो कुछ सोशल ट्रेडिशंस और इनकी जो बात है, हम लगभग वही बात करने वाले थे। और हम आपके तरीके से स्कॉलरली उसको नहीं करते, लेकिन कर पाएंगे, रादर यूं कहूंगा मैं, करना चाहेंगे लेकिन कभी कर नहीं पाएंगे, इतनी ऊंचाइयों को नहीं छू पाएंगे। लेकिन एक दूसरी चीज जरूर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोगों ने महसूस की है, मैं जिस संस्था के से आता हूँ उसका नाम है दीनदयाल शोध संस्थान। नानाजी देशमुख ने 1968 में इसकी कल्पना ही नहीं की, इसको मतलब ही फाउंडेड इट इन 1968 इमीडिएटली आफ्टर दीनदयाल जी's demise।
और उसके पीछे एक उद्देश्य था कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म नाम का जो दीनदयाल जी ने एक फिलॉसफी उसी समय दी थी, उससे कुछ वर्षों पूर्व, उसको किस तरीके से ग्राउंड पर वैलिडेट किया जाए। तो पहले तो उस पर कुछ इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस का एक चला सिलसिला 10 वर्ष तक, और उसके बाद 1978 ऑनवर्ड्स जो रहा रूरल डेवलपमेंट का एक मॉडल नाना जी ने, गोंडा अपने पास में ही है, यहाँ से शुरू किया, फिर बीड़ महाराष्ट्र में, और उसके बाद चित्रकूट में जाकर फिर उन्होंने उसको अपनी कर्म भूमि बनाया। वहां से ये सारी की सारी यात्रा हम लोगों की प्रारंभ हुई, और इस यात्रा में एक बहुत इम्पोर्टेंट जिस मंत्र को हम सबको मन में हम लोगों के बैठाया, और वो बहुत अच्छे से बैठा मन, वो ये है कि हम एक हर थॉट में अपना एक होलिस्टिक अप्रोच की बात करना चाहते हैं और करते हैं, प्रयास करते हैं जितना कर सकते हैं, लेकिन उसमें कहीं भी किसी चीज पर एक बहुत ज्यादा लॉपसाइडेड एम्फेसिस भी नहीं होता है, ना कोई उसको किसी चीज को इस तरीके से इग्नोर करने की या नेग्लेक्ट करने की बात रहती है। अभी हम जिस जगह बैठे हैं और जिन स्कॉलर्स के बीच बैठे हैं, वहाँ इस बात को करना थोड़ा सा मुश्किल है। एक तो BHU का सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, और यहाँ अगर मैं कुछ इंजीनियरिंग से लेकर चर्चा करूं तो मैं उसके योग्य नहीं, क्योंकि मेरा कभी सब्जेक्ट नहीं रहा। ये सेशन ऐसा आप करिए नहीं लेकिन आपने अपने दिल की बात जब कह दी तो मैं कुछ खुला है कहने के लिए, मन की अपनी बात को कहनी चाहिए। कुछ चीजों में देखने में आया है पिछले बरसों में और पिछले डिकेड्स में, विश्व भर में हुआ और उसका प्रभाव हिंदुस्तान पे भी बहुत पड़ा है, उसका इन्फ्लुएंस, वो है टू मच ऑफ साइंस एंड टू मच ऑफ टेक्नोलॉजी। और जब भी कहीं किसी चीज पर, एक चीज पर ज्यादा जोर हो जाता है और दूसरी चीज नेग्लेक्ट होती है, तो फिर हमारे यहाँ पर हर चीज में असंतुलन बैठने की संभावना रहती है। ये असंतुलन अभी अपनी चर्चा में पिछले 1 घंटा हम लोग लगभग बैठे हैं अभी, और इसमें बार बार आई है बात कि हम एक बहुत डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं, सीन से गुजर रहे हैं। प्रोफेसर चौधरी ने इस पर खूब अध्ययन भी किया, उन्होंने देखा, और गंगा की बात इन पर्टिकुलर अगर हम करते हैं तो पिछले 20 वर्षों में इस पर बहुत ज्यादा दोबारा शुरू हुआ। शायद मेरे ख्याल में 1984 में राजीव गांधी जी ने वो एक शुरू किया था, गंगा एक्शन प्लान बनाया था। उसके बाद वो चला, तो उसमें सिर्फ एक इंजीनियरिंग अप्रोच लेकर बात की गई थी और उसी के ऊपर उनका आधार था, या फिर एक टेक्नोलॉजी को किस तरीके से उसकी सफाई करेंगे, क्या करेंगे, ये सारी चीजें कही। लेकिन इस पूरे के पूरे जो डिस्कोर्स में एक एस्पेक्ट हम लोगों से छूट गया, वो ये एस्पेक्ट था कि जो आप लोगों का सब्जेक्ट भी है आज के इसका कॉन्फ्रेंस का, वो था ट्रिब्यूटरीज। मैं ट्रिब्यूटरीज की बात इसलिए कह रहा हूँ कि गंगा के किनारे जितने लोग रहते हैं उससे भी अधिक लोग जो हैं उसकी ट्रिब्यूटरीज के किनारे रहते हैं, और उन लोगों का जो गंगा में उन ट्रिब्यूटरीज का योग बनता है, वहां जाकर उनका कंट्रीब्यूशन बनता है उन ट्रिब्यूटरीज का, वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना गंगोत्री से ग्लेशियर से आता है, तो वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम ट्रिब्यूटरीज के रोल को कहीं भी कमतर करके आंक नहीं सकते हैं, उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। और उसकी ट्रिब्यूटरीज के किनारे जो लोग रहते हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है, वो कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज्यादा है, और वो कहीं कंट्रीब्यूशन किस चीज में जाकर बदल गया है, तब्दील हो गया है, उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम नहीं एकदम से कोई उसको शब्द दे सकते, लेकिन वो जो एक डेवलपमेंट का नया पैराडाइम बना, उसकी भेंट चढ़ गया। और ये पिछले 40-50 वर्षों में बहुत तरीके से जिसकी बात हुई, उसमें ट्रिब्यूटरीज के किनारे के जो लोग थे जिनकी उसमें स्टेक्स थी, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। जैसा अभी बीच में चर्चा में भी आया कि आपने ही उसको एक दिया कि जब तक मछली नहीं अच्छे से रह पाएगी किसी नदी में, तब तक वो नदी का अस्तित्व ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसमें मछुआरे हैं, इसमें केवट हैं, इसमें वहाँ का किसान है, वहाँ पर इवन जो हम सैंड माइनिंग को आजकल बहुत खराब दृष्टि से देखते हैं, सिर्फ माफिया की दृष्टि से ही देखते हैं कि सैंड माइनिंग मीन्स माफिया, वो बन गया, ये बात अलग है। आज के अगर हम युग में देखेंगे तो हम कहने को मजबूर भी हो जाते हैं इस बात को,
लेकिन अगर किसी भी ट्रिब्यूटरी का या किसी मेन रिवर बॉडी का हम लोग जब तक डीसिल्टिंग नहीं करेंगे तब तक उसका पार्ट चौड़ा होता रहेगा, वो कोर्स बदलती रहेगी, कभी कहीं भटक जाएगी, कभी कहीं भटक जाएगी। तो उसका गहराकरण, उसके इसमें से जहां से निकालनी है, जितनी निकालनी है, जितनी प्रकृति ने हम लोगों को इजाजत दी है ये सब करने की, जितना प्रकृति सम्मत है और मतलब इकोलॉजिक फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है, तो उसमें हम लोगों को ये पैरामीटर्स तय करने की जरूरत है। और ये पैरामीटर्स कुछ ऐसा हुआ है अनफॉर्चुनेटली कि सारे के सारे पैरामीटर्स जो तय हुए हैं वो हम लोगों ने अपने लिए नहीं कर पाए, हमारे ऊपर बाहर से थोपे गए और हम उनको बस आंख मीच कर उनको स्वीकार करते गए, और उसके हिसाब से हमने अपना एक नया कोर्स, नया डिस्कोर्स, नए नैरेटिव्स, ये सब चीजें तैयार कर ली। और उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि आज भी इतने बरसों बाद भी, इतने डिकेड्स के बाद भी हमें बार बार ये बात करनी पड़ रही है कि बेचारी गंगा के क्या हाल हो गया है, कैसी हो गई है, क्यों हो गई है, यहाँ की ट्रिब्यूटरीज के क्या हाल हैं। और ये सिर्फ गंगा तक सीमित नहीं है, ये देश की सभी रिवर बॉडीज, रिवर्स के साथ है, वाटर बॉडीज के साथ भी यही हाल हुआ है। अभी जैसा मीना जी ने बताया कि 1770 में, अब से 250 वर्ष से भी ज्यादा हो गए इस बात को, 1770 में अगर हम किसी वाटर बॉडी को डिस्टर्ब करते थे, उसके स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करते थे, उसके साथ खिलवाड़ करते थे, उस समय 1000 रुपया फाइन, उस समय 1770 में 1000 रुपया फाइन और 6 वर्ष की कारावास। ये मिलना आप उस समय के समाज की जागरूकता पर देखिए। और आमतौर पर ये होता था कि समाज स्वयं इतना जागरूक था, डर तो ठीक है कि इतना पैदा किया गया कि एक फाइन्स का और पेनल्टीज का सिस्टम बनाकर, लेकिन समाज स्वयं में इतना जागरूक भी था और वो दिल से भी ज्यादा काम करता था। उसका इन वाटर बॉडीज के प्रति जो एक लगाव था वो बहुत आत्मीय लगाव था। और वो आत्मीय लगाव इसलिए था क्योंकि वो कल्चरल वैल्यूज के साथ में उसने सोशल कस्टम्स के साथ में, उसने अपने ट्रेडिशंस के साथ में, अपने फेस्टिवल्स के साथ में इन सब चीजों को जोड़ा हुआ था। समय समय पर किसी भी छोटे से तालाब की पूजा करना, कुएं का पूजन करना, पूरे देश भर में कहीं भी चले जाएंगे हम सबको ये चीजें बार बार देखने को मिल जाती हैं। और इससे समाज लगातार इन वाटर बॉडीज के साथ में अपने आप को बहुत आत्मीय रूप से जुड़ा हुआ महसूस करता था। और इन कल्चरल प्रैक्टिसेस के माध्यम से ये जो ट्रेडिशनल विजडम है, ये जो इंडिजिनस नॉलेज है, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को बहुत सहज रूप में, बहुत आनंद के साथ, बड़े उत्सवपूर्ण माहौल में इस तरीके से ट्रांसफर होती थी, इस तरीके से पास ऑन होती थी कि हमें पता ही नहीं लगता था कि कब हम सीख गए। हमको उसके लिए बहुत बड़े बड़े ग्रंथ या अगर कहें तो हमें वेद उपनिषद पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती थी, बिल्कुल भी नहीं पड़ती थी, क्योंकि हमारा समाज ही इन सब चीजों को खुद प्रैक्टिस करता था। हर एक व्यक्ति समाज का इन सब चीजों को प्रैक्टिस करता था। तो हमको अगर इन सारे चैलेंजेस से निपटना है, लड़ना है, तो हम लोगों को एक लॉपसाइडेड अप्रोच को थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा। हम बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में ना उलझें और बहुत ज्यादा अपने कल्चरल वैल्यूज के साथ तो रहें। ऑफ कोर्स कल्चरल वैल्यूज को तो हम नहीं छोड़ेंगे, मगर हम अपने ट्रेडिशंस में भी इतने फंस कर ना रह जाएं कि हम समय के साथ साथ उनकी तरफ भी ध्यान ना दे पाए कि हाँ, कहाँ हमको जरूरत है समय के साथ चलने की। बहुत चीजें बदली हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि हम अपनी सामाजिक वैल्यूज में हमारी जो देशानुकूल परिस्थितियां हैं, उन देशानुकूल परिस्थितियों के साथ साथ बिल्कुल अब बंधे रहें, उन जड़ों से जरूर बंधे रहें, लेकिन जड़ ना हो जाएं, जड़ता में ना उलझ जाएं। इसके लिए हमें युगानुकूल होने की भी आवश्यकता है। और बस कुल मिलाकर ये है कि नाना जी हम लोगों को एक चीज कहा करते थे, दीनदयाल जी ने भी इस चीज को बार बार कहा कि एप्रोप्रिएट साइंस एंड एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। तो साइंस बहुत जरूरी है,
और जैसा अभी प्रोफेसर साहब अपने इसमें बता रहे थे कि हमें खाली मिस्टिसिज्म में भी नहीं जाना है तो खाली साइंस में भी नहीं जाना है, हम सबको इस पूरे के पूरे ह्यूमन रेस को दोनों चीज़ों की एक आवश्यकता है। कहाँ कितना बैलेंस बनाकर रखना है, ये आप सब विद्वान लोगों के बीच में हम बैठे हैं, हम आमतौर पर गाँव वासियों के बीच में काम करते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं, दूसरी जगह जाकर शेयर करते हैं। हमारा रोल लगभग इतना ही रहता है, उसमें कुछ कहीं वैल्यू एडिशन कर सकेंगे तो हम लोगों को बहुत खुशी होगी। आप सबका धन्यवाद, नमस्कार। ये घुमाना ये टेक्नोलॉजी का कमाल ही है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया, क्योंकि उमा भारती रिसोर्सेज में उन्होंने सर ये जो नमामि गंगा प्रोग्राम डिसाइड किया गया था, तो उनका एक व्यू ये था कि जितनी गंगा के किनारे जितनी ग्राम पंचायत गंगा ग्राम बनाए, बहुत नॉवेल आइडिया जिसका भी रहा हो। तो उसमें सर क्या हुआ था कि जो पांचों स्टेट है जहाँ से गंगा फ्लो हो रही है, तो इन पांचों स्टेट में सर्वे किया गया तो 4,000-5,000 ग्राम पंचायत आती स्टेट आप इधर गंगा थी। तो उमा भारती जी ने इसमें बताया था कि कम से कम एक जो है ग्राम पंचायत को गंगा ग्राम बनाना। अच्छा, राइट दैट टाइम आई वाज इन एनएमसी। दिस वर्क वाज असाइंड टू मी। ओके, तो मैंने क्या हुआ कि टीबीएसएन के साथ इसमें ज्वाइन सेक्रेटरी थे, और उस समय उन्होंने हमसे बोला कि सिंह हर कलेक्टर को एक डीओ लेटर लिखो मेरे को, और उनसे 5-5 गांव मांगो अपने डिस्ट्रिक्ट से। मैंने हर डीएम को लिखा था, बनारस से भी गया था कि इन गाँव को, गंगा गाँव को डेवलप करना। इन द मीन टाइम टीबीएसएन के साथ चले गए और आगे यूपी से एडिशनल सेक्रेटरी। तो इन्होंने फौरन बोल दिया कि आप देखो ये सैनिटेशन का काम जो है हमारा नहीं, एक काम जो है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सप्लाई का है, तो हमला में तुम पढ़ दो उसके साथ। फॉर्चुनेटली जो गंगा ग्राम की गाइडलाइन बनी है किताब, मैं नहीं लाया सर, किताब मैंने बनाया सर। तो मैंने बहुत इतनी अच्छी आइडिया थी, तो मैंने ये भी उनको बोला था। उसमें सर करीब 7-8 मिनिस्ट्री के साथ में एमयू साइन किया गया, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ आरडी, सबसे करके कि ये वाली जितने प्रोग्राम हैं इन गाँव में कन्वर्ट करें। जैसे कि तो मैंने सजेशन दिया कि इतना बड़ा बनारस, अच्छा एक बड़ा सेट पार्ट रहा सर हमारे बनारस के लिए, वेरी थैंक यू, ओपनली आप देखिए इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी विश्व माने प्रसिद्ध। गंगा की जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है हमारी सर, आपको कानपुर के बाद शुरू होती है, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, उसके बाद तो पता नहीं कुछ लोग ऐसा पड़ जाता है। बनारस को सेंट्रल न बना के गंगा का ऑफिस बना दिया कानपुर नंबर सारे वगैरह में अपना कुछ कर लिया होगा जो भी किया। तो उसमें से क्या हुआ कि शार्ट में आपको जी आप अपनी बात शार्ट में कह के बाद में जैसे कि हम इन्होंने जो बोला कि वो जो गाँव का कल्चर वाला, हम उसको बोला कि उनका एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, उसमें रूरल टूरिज्म बहुत डेवलप हुआ होता है, जो गंगा ग्राम डेवलप हुआ, लेकिन अब आए जाए टूडे सारी चीजें में दो बातें जो है इस बात शब्द और बोल दूं, जी जी प्लीज प्लीज। मैंने 2 चीजें कही थी, टू मच ऑफ साइंस, टू मच ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टू मच ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो। गवर्नमेंट का जब भी वो आता है तो समाज पीछे रह जाता है, वो समाज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल के वो डिपेंडेंट हो जाता है गवर्नमेंट पर, तो उसको लगता है कि बस सरकार करेगी, हम क्यों करें। उसकी वजह से भी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक तरीके से भूल गया जी। ये सारी समस्याओं की जड़, आपने जो प्रोफेसर चौधरी ने अभी बुकलेट लिखी, मैं इसमें पढ़ रहा था, 14 पन्नों में से 12 पन्ने जो हैं इनके, वो सारे के सारे समाज या समाज से रिलेटेड हैं। आखिरी 2 पन्नों में आपने साइंस के वो दिए हैं एस्पेक्ट्स, इनको बैठाया जा रहा था साइंस में, मैं पकड़ के कहा नहीं कि आप सोसाइटी 2-3 बातें हैं जो आपके उससे निकल के आई हैं। एक तो ये है कि जो आपने बात कही कि टू मच साइंस, तो ये कभी भी बैलेंस के रूप में बातें नहीं हुई हैं, फिलोसॉफिकली प्रैक्टिकली
मैं यहाँ पर 2-3 इंफॉर्मेशन केवल देना चाहूँगा, नॉट कमेंट, नॉट सजेशन, नथिंग लाइक इंटरप्रिटेशन। एक ये है कि यही वो शहर है, जैसे आपने कहा कि BHU की बात की कि आज जो है IIT कानपुर में खुला, तो ये आज का थोड़े है, BHU की जड़ ही इसी तरह से शुरू हुई है। बनारस पर जो सबसे बड़ी प्रोजेक्ट है जिसको मनमोहन सिंह ने शुरू किया और रियल बटन दबाया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 2014 जनवरी में 100 करोड़ की पहली ऐसी प्रोजेक्ट शुरू हुई जिसमें वर्ल्ड बैंक का सपोर्ट था, ठीक है। तो बनारस पर लेकर उसमें अजमेर इत्यादि 10% था, मेन बनारस का शुरू हुआ, जिसको संधि नाम से जानते हैं। किसी सिटी पर सबसे बड़ी प्रोजेक्ट है 100 करोड़ की, खत्म हो चुका, दूसरा फेज फिर 100 करोड़ चल रहा है। अब बता सकते हैं उसका हेड ऑफिस कहाँ है? जॉर्जिया में, अच्छा, USA में, ठीक है। और स्पेशल रिमोट कंट्रोल में कहा ना, GIS और ये सब जोड़ करके PM भी वही करते रहते हैं। 2 बार उद्घाटन हुआ, मैं तो लास्ट बेंच पर ऐसे बैठा था क्योंकि मैं इनवाइटेड नहीं रहता हूँ इसी जगह पर। तो ये इसी IT में हुआ, वाह वाह सब अखबार भरे, वाह क्या हो रहा है, अरे भाई तो चल के फील्ड में दिखा लो तो कहाँ क्या हो रहा है। जैसे जो ही ये बात किया 2 महीने पहले इस प्रोजेक्ट की, इसी सेमिनार की, हमसे, हमारा ये फील्ड कुछ नहीं है, जो इन्होंने हमसे बात किया तो हमने कहा आपसे एक बहुत रिक्वेस्ट है, उसे जरूर मत मानिएगा लेकिन सुन लीजिए पूरी, बीच में मत छलांग डालिएगा। हमने क्या ये नहीं हो सकता है कि हाफ टाइम खाने के बाद या जैसे आप जोड़ दें 3 घंटे समय देकर 80 पर वॉक कराएं भीतर, लेट देम एंजॉय दैट ऑल दिस ऑब्नॉक्सियस स्मेल, जो आपको वॉमिट हो तब ना जानेंगे कि 80 माह है कि नहीं, उसका दर्द क्या है। और ड्रोन से कर रहे हैं, आदमी के दिल से भी तो जोड़ो यार, ड्रोन से तो बहुत हम लोग जोड़ चुके हैं। एरियल फोटोग्राफ तो 50 से यहाँ के मौजूद है, एनालिसिस हुई है, कहा कि भाई जितनी प्रशंसा है मेरी कर दी है, मेरा मुंह बंद हो गया, मिठाई डाल दी गई, ठीक। लेकिन बहुत लोग जैसे जो आपने जिस सेंटर की बात की होलिस्टिक की, ये तब होगा जो रियल इस फील्ड, आप जो दर्द आप कहे चाहे जिस भाषा में आपने कहा, लेकिन वो दर्द और लोग भी समझ गए कि क्या होता है फील्ड में जाने पर, तो कहीं तो ये गैप हो गया। तो एक ये बात होती है कि हम कैसे उसको क्या करें। अच्छा, जनरल इंफॉर्मेशन की बात पर जो मैं कह रहा था जरा सा डाइवर्ट हो गया, वैसे इसके बाद मेरा ही है तो 10 मिनट बोल सकता हूँ। ये वही शहर है जहाँ से शुरू हुआ था, जिसको नोबेल प्राइज मिला। जो बात आप एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी की कर रहे हैं, उसका फिलोसॉफिक एस्पेक्ट वो किताब है जो 1962 में छपी थी, 65 में उस पर नोबेल प्राइज मिला था। किताब की टाइटल है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, लेखक है अर्नेस्ट शूमेकर, जिसकी इंडियन एडिशन जब हम लोग स्टूडेंट थे तो केवल 3 रुपये में बिकती थी। और हमारे एक टीचर थे कि लेके किताब आना बड़े गुस्सैल किस्म थे, मैंने मास्टर क्लास MSc में प्रोफेसर कहना बड़े मार मारेंगे, पढ़ के आना, किताब खरीदो, एक टाइम खाओ चाहे मत खाओ, किताब पढ़ के कल आना, किताब लेके क्लास में आना। क्या नाम है सर? स्मॉल इज ब्यूटीफुल शूमेकर, इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज पाए थे 1962 में, जिस किताब की बेस है। और गांधीयन इकोनॉमिक्स जिसकी बात आप करते हैं, उसके जनक यहीं से शुरू होते हैं। ये आइडिया कैसे मिली इस आदमी को? इसी राजघाट में, जहाँ राजघाट एक प्लेस है यहाँ पर नादरन साइड में, तो वहाँ पर आश्रम है, सेवा संघ आश्रम है गांधी जी का। और विनोबा भावे ने ये बात उनको समझाई जो उसके प्रीफेस में लिखा। एक ये बात, लेकिन क्या जैसे यहीं से पूछ लीजिए, इन्हीं से पूछिए, नाम सुना है क्या शूमेकर? कहीं कह देंगे झूठो भले बोल दे, लेकिन मैं 100% इनका सेवक जानता हूँ, नहीं जानते यूज नहीं करूँ, क्योंकि हाई टेक के आदमी है ना। जय भोलेनाथ। सही है बात ही, हमारी बात काट नहीं सकते ना, सेवक की बात काटेंगे तो हम काटने लगेंगे। तो ये जो है BHU में कभी भी इस बात को नहीं लिया गया, जोड़ा गया, ठीक है। तो ऐसी एक नहीं घटनाएं हैं, कई ऐसी चीजें हैं जो मालवीय जी के 3 जो लास्ट विश थे, तीनों में से एक भी पूरे नहीं किए गए। और तुरंत उसका रिजल्ट जो है 60s के दौरान 2 नावल इस पर छप चुके हैं कि 9 गांव को आपने जो यहाँ से हटाया, उसमें से अधिकांश क्रिमिनल बन गए, डकैत गुंडे बदमाश बन गए। कहाँ थे मालवीय जी के आदर्श मधुर मनोहर? क्योंकि आपने वो प्रोग्राम डाला ही नहीं। क्या आज तक मेडिकल कॉलेज के उडप्पा साहब जिन्होंने इंस्टीट्यूट बनवाया, उन्होंने चंदौली में विलेज का जो होलिस्टिक की बात कर रहे हैं, उन्होंने एक स्कीम पास कर दी, सो इन्फ्लुएंशियल पर्सन,
उनके चेले चपाड़ी लोग और डायरेक्टर मिनिस्टर सब थे, इसलिए जो कह दिए वही ब्रह्मवाक्य कह दिया कि नहीं जो प्रिवेंटिव मेडिसिन है, सोशल मेडिसिन है, बाकी 4-5 डिपार्टमेंट में कोर्स होगा 1 महीने का गाँव में, और सीधे हर चीज को आपको अध्ययन करके उनको करना है। चंदौली गांव को मॉडल के रूप में बनाया उन्होंने, कई चीजें और विकसित हुई, समय के अनुसार सब समाप्त हो गए। तो ये बात है हिस्टोरिकली ये सब चीजें प्रूफ है। जो चित्रकूट की आप बात की है, मैं 2 बार वहां गया हूँ, मैं उनके चरण भी छुआ हूँ और मैं बहुत ही प्रभावित हुआ। और फिर हम लोगों ने चित्रकूट पर दूसरा एस्ट्रोफिजिकल काम किया, एस्ट्रोफिजिक्स से जुड़ा हुआ। एनीवे जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। तो कई चीजें ये हुई, क्या कल्चरल वैल्यूज हम मेंटेन कर पाए। इसका लास्ट उदाहरण जो इंग्लिश में अवेलेबल है, हिंदी शायद कोरोना में नहीं छप पाया, हो चुका है प्रोसेस, पंडित जगन्नाथ की गंगा लहरी। ये वही पंडित जगन्नाथ हैं जो जिनके विषय में लोकोक्ति है, प्रूफ हिस्टोरिकल नहीं है कि औरंगजेब की लड़की से इनको लव अफेयर हुआ, फांसी में क्या क्या तमाशे, लेकिन इसका कोई हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं कि वही जगन्नाथ है या पहले वाले जगन्नाथ। गंगा लहरी में शुरू में इंट्रोड्यूस होते हैं तो 14 पाप गिनाए गए हैं। यदि ये 14 पाप से आप बचे तभी जो है गंगा को आप मां समझ सकते हैं या आशीर्वाद ले सकते हैं। और गंगा मतलब ये गंगा नहीं होती, आपको पता है 7 गंगाएं हैं भारत। जितनी भी पवित्र नदी होगी, चाहे अमेरिका में चाहे अंटार्कटिका में आप जाए, यदि हिंदू सनातन आप फॉलो करते हैं तो संकल्प लेंगे तो गंगा के ही नाम लेंगे। और उसकी 2 विधियां हैं कर्मकांड के अनुसार। ये तुलसी की माला आपके पास है, माला छुआ दीजिए, गंगा जल हो जाए। नहीं कुछ है तो ऐसे करके हे माँ बस आ जा, छू दिया, गंगा हो गया। तो संकल्प आप गंगा से ही। तो 14 पाप में पहला पाप केवल मैं सुना रहा हूँ। पहला पाप है पंडित जगन्नाथ के अनुसार, छपा हुआ, आप कहेंगे रेफरेंस में दे सकता हूँ। तो पहला पाप है कि जो आप स्नान करते हैं वो आपके जीवन का सबसे बड़ा पाप। सेंटेंस पूरा नहीं है तो घबराइएगा मत कि तो नहीं सुना। ये है कि जब प्रश्न करता है, उस पर टिप्पणी है रामानुज संप्रदाय के लोगों का, कि माँ के पास आप मिलते जाते हैं तो क्या करते हैं? सब कुछ भूल जाते हैं क्योंकि उसी स्रोत से आप पैदा हुए हैं, इसके माध्यम से। ऐसे पैर रखते हैं, फिल्म में देखे नहीं, सब तरह से मंदिर से हार जाता है तो हीरो कहाँ जाता है? माँ की गोद में ऐसे करता है और ये हो गया तो मैं नहीं मानता। सो मेनी थिंग्स लाइक दैट। तो वो कहते हैं कि आप इतना शुद्ध हो करके जाए तो कैसे शुद्ध हो? पहले आप बाहर शुद्ध जल से स्नान करें, फिर उसमें गंगा जल से छिड़कें। यदि गंगा से स्नान किया तो ठीक है, नहीं तो गंगा जल से छिड़कें। उसके बाद तुलसी को माथे पर रखें और वहां ध्यान में पहले बैठे गंगा के तट के किनारे, और बैठ करके 2 चीजों का आप जरूर ध्यान करें। किसी भी तरह के किसी के भी प्रति निगेटिव भाव न, किसी भी तरह के किसी भी वे में सेक्सुअल भाव न रखें। 3 भाव कर दिया गया है। और जब आपको लगे कि शून्य हो गया तब माँ से अब मिलने जाना है। तो माँ में गए आप, और जो ही उसमें एक ऐसे किया, फिर निकल आइए किनारे और खड़े हो। ये पहला है। यदि आपने नहीं किया तो ये सबसे बड़ा पाप। कितने हम करते हैं? 3 अभी हैं लोग। छठ के मौके पर आप देख सकते हैं बूढ़े लोग जो संकल्प लेके करते हैं। तो ये जो बात कही गई कल्चरल वैल्यूज। दूसरी जो इसमें बात की गई कैसे आती है, तो संस्कार से। संस्कार तो हमने यही सिखा दिया है, इसको आरएसएस का बैनर मत समझिएगा। सिखाया बच्चों को, घर में गए आप कौन है? डैडी, मैंने आप डैड है। आप कौन है? मम्मी, तो आप जो है मम्मी बन गई। ठीक है, यही सिखाया ना। पैर नहीं छुएगा, छुएगा भी तो ऊपर से ऐसे करेगा, क्योंकि हमने उसको वो चीज डाली ही नहीं है। आप कहेंगे कि मैं बकवास कर रहा हूँ, ठीक, उलट देता हूँ इसको। जापान आज चाइना में भी शुरू हो गया। 4-5 सालों में 4-5 बार जो हम लोग गाँव की विजिट करके देखे, तो उन्होंने एक अपने उस दबाव से शुरू किया है कि उस लाओ पूजा पाठ शुरू हो गई। आपको बाकायदे टिकट देना है। यदि आप टूरिज्म की बात कर रहे हैं तो रिलीजियस टूरिज्म पहले होगा। इको टूरिज्म का मतलब फोटो खींचना नहीं होगा। एक एक वनस्पति को आप बचाना होगा, उसके कैरेक्टर को जानना होगा। ये चीन में शुरू हो गया। तो आज नाना जी देशमुख कहाँ है जी? कथा में ना है। कितने लोग हैं चित्रकूट जाके देखें जी उस व्यक्ति ने कैसे जीवन लगाया है। सब कुछ छोड़ करके उसी में लगा दिया। एक एक प्लांट को, एक एक फूल को जो है छू करके ये बताया कि कैसे हम सीखें। तो एक ये दूसरी चीज है, कहीं से वो संस्कार हमारा गलत है। कथा तो बहुत कह रहे हैं। आजकल एक नया मूवमेंट चल रहा है, हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका, नाम सुना होगा आपने, जिससे में बहुत बड़ी संस्था है और हिंदू संस्कार को दुनिया में अपने
एक तरह से ले आ रहे हैं। उसमें बड़े बड़े साइंटिस्ट शामिल हैं, सुभाष गर्ग शामिल है, राजवेदम उसमें शामिल है, अपने यहाँ से रामकृष्ण शामिल है, मैंने लाइक दैट। तो इससे जो बातें निकल के आई कि कल्चरल वैल्यू, ट्रेडिशंस, हाउ टू अवेकन ऑल दीज थिंग्स टू। जगन्नाथ का मैंने आपको उदाहरण दिया, शूमेकर का उदाहरण। किताबों की कमी नहीं है, ज्ञान की कमी नहीं है। इन सबको मिलाकर मैं एक रिमार्क दूंगा एक ऐसे आदमी का जिनको दुनिया में, एक ऐसा भी आदमी हुआ जिसको कंप्यूटर गुरु की टाइटल दी गई। और 1979 में क्लीवलैंड मॉडल ऑफ कंप्यूटर, जो सबसे बड़ा 11,000 के मैट्रिक्स, 11,000 गुणे 10,999 गुणे 10,900 जोड़ लीजिए कितना बड़ा, सबसे वही मॉडल दिया था। नाम है मेसाउरिक, जिनको दुनिया में कंप्यूटर गुरु के नाम से कहा गया। और साधु नुमा, जटाधारी और इस तरह के रहते थे। उनको इंदिरा जी ने अपने काल में, ये स्पेन की पूरी एक इशू भी छपी हुई है जिसमें मेसाउरिक खड़े होकर इंदिरा जी से ऐसे बोल रहे हैं। तो उसमें उसने कहा, जो कैलकुलेशन उसका सारा दिखा रहा है, तो सैटेलाइट से देहरादून से जोड़ा गया और वो पिक्चर जो है स्पेन पत्रिका जो है अमेरिकन एम्बेसी की, उसमें वो छपा हुआ 1982-83 की बात। तो उसमें वो कैलकुलेट करके देता है कि आने वाले 50 से 60 सालों में दुनिया का सबसे रिच, सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे पावरफुल, कोई उससे नहीं उलझेगा, वो कंट्री कौन होगा। तो सडन कर्व गया है इससे। तो इंदिरा जी ताली बजा ली, शुरू कर दी। ये सब आ रहा है लगातार ऐसे फोटो। तुरंत कहा, प्लीज मैडम स्टॉप क्लैपिंग, आई एम नॉट कंप्लीटेड माय सेंटेंस। तो आप समझ ही सकते हैं इंदिरा जी किस तरह के थे, एकदम अवाक हो गई। तो कहा 2 चीजें ये साल हो गई। तो वो 2 फैक्टर दिखाया। उसके बाद उसको जो ही लगाया, इंडिया नीचे चला गया। कौन कौन फैक्टर थे? एक तो कहा कि ऑनेस्टी का ना होना, किसी चीज को जो भी जिस रूप में परिभाषित, ऑनेस्टी का ना होना। और दूसरा, जितना थियोरेटिकल प्लान है, दुनिया के बेस्ट प्लान है, स्ट्रेटजी, सब कंट्री को मिला दिए, सब भारत में है। और उसने वो इशू किया। तो पहला किया नॉन ऑनेस्टी एट ऑल, दूसरा का नॉन इम्प्लीमेंटेशन। बताया कि 6 जगह से पास हुआ, 13 जगह से जोड़ दिया, 36 जगह और हो गया। इसमें एक ही क्यों नहीं किया? क्योटो में तो किया, टोक्यो में तो किया, चीन में तो हो गया, बीजिंग जाके नया बीजिंग देखिए, और ट्रेडिशंस जाइए देखिए। समोसा टाइप की चीज वेंडर भी बेच रहा है, एकदम हाई टेक, बटन छुइए क्या चाहिए, केवल स्क्रीन पर करिए आ गया। ये भी तो है, यहाँ क्यों नहीं? कहीं ऐसे बताइए जो इस तरह के कल्चर वाले देश हैं। क्या ऐसे भी कोई देश है जहाँ इस तरह के 2 बड़े बड़ी, जिसके होलिस्टिक कर रहे हैं, नॉन होलिस्टिक, सब इतना बड़ा गैप खड़ा हुआ है, क्यों नहीं? तो ये ऐसे बिग सवाल हैं कि हम लेक्चर तो बहुत देते हैं, हम सभी, हम भी वही है। ये मत समझिएगा कि हम बड़े बड़ी ये है, हम भी है, क्योंकि उसी पार्ट में हम लोग जुड़े हुए हैं। तो यह जो प्रश्न है, कम से कम जो शुरू में मैंने एक बात, एक कमेंट ये किया, किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए तो पहला वो काम करता है डायग्नोसिस। मॉडर्न डॉक्टर वाला नहीं बात करता। मॉडर्न डॉक्टर को क्या करता है, आपको 100 किस्म का झूठा टेस्ट लिख देगा, क्योंकि उससे उसका कमीशन आएगा और आप भी सेटिस्फाई होंगे, जेब आपका खाली हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि नहीं, ये तो बड़ा भारी, बहुत अच्छा। लेकिन जो रियल डॉक्टर होता है, जो आज BHU में नहीं है, एक आदमी है, अकेला है, जिसको सब लोग जानते हैं, जो पद्मश्री लेने नहीं गया। चीफ मिनिस्टर आते हैं तो खबर किया, सॉरी, जिसको मिलना हो, हम अपना इस समय पेशेंट देख रहे हैं, पेशेंट मेरा भगवान है, योगी और मोदी नहीं। तो कहे क्या करना, कहा चुप, जो कह दिए क्या कर लोगे भी, पैसा लिए ही नहीं जिंदगी भर। 40 साल यहाँ सर्व किया। एम्स का भी डायरेक्टर 3 दिन रहा, रिजाइन करके चला आया। कभी पैसा लेने 101 रुपये लेते, अब दूसरे लोग भोजन और ये करा देते हैं, बस वही करता है। वेणुगोपाल के बाद 2nd मैन ऑफ इंडिया जो खोपड़ी खोल के जोड़ा पुल कर सकता है, ब्रेन सर्जरी का, वो है प्रोफेसर लाहिरी। और घड़ी से आप मिला सकते हैं, टाइम पर आना, टाइम पर जाना, कभी किसी के सवारी को नहीं। तो ये जो बात आपने उदाहरण दिया वहाँ का, ऐसे छिटके कई उदाहरण हमारे यहाँ। तो ये नहीं कह सकते कि संस्कार खत्म नहीं हुआ, कहीं ना कहीं वो दब चुके हैं। अब वो किसी रूप में जुड़ जाए तो हम कह दें कि फ्रॉम होल, मतलब छेद से होल, ये मामला जुड़ सकता है। तो आशा पर ही सब दुनिया टिकी हुई है।
अच्छा, आप तो ये सब तो इस पर सर क्या नाम है डॉक्टर साहब का? नाम भूल गया। किसका? डॉक्टर साहब का नाम खोपड़ी खोलने वाली जो है। लाड़ी का? कहाँ? अच्छा, लाड़ी है। हाँ लाड़ी। कोर्स लाड़ी ब्रेन सर्जरी के सेकंड मैन आफ्टर वेणुगोपाल के वो स्टूडेंट है। बोथ टुगेदर दे हैव वर्कड। हाँ, और आज भी उसी तरह से इलाज कर रहा है। रिटायर हुए 15 साल हो चुका है। ही इज नॉट टेकिंग पेंशन, ही हैज नेवर टेकन एनीथिंग सैलरी फ्रॉम BHU एक्सेप्ट कि आप फ्री में रेजिडेंस है। उनके लिए स्पेशल गवर्नमेंट का लॉ पास कर दिया गया है कि लाइफ लॉन्ग डिस्टिंग्विश, वो भी पेपर पर नहीं, उनको नहीं कहा गया, वो कभी नहीं लिखते कि मैं लाइफ लॉन्ग डिस्टिंग्विश प्रोफेसर। हम लोग तो जरा सा मिल जाए तो LD FLD DLD OLD फलाल पर करेंगे। नो नो नो। तो एक उदाहरण मैं ऐसा भी दी, एक उदाहरण इसी हिंदू विश्वविद्यालय का, जिसने अपनी मैंने दुनिया अपनी पूरे जिंदगी की कमाई की नई थीसिस इंडो ग्रीक को जब चेले ने क्वेश्चन किया PhD के बाद, तो कहा तुम एक और PhD ले ले, क्योंकि बिना लंदन के स्टैंप के इस देश में कोई मतलब नहीं। ये कैसे होगा? हमने कहा ठीक है, अभी हम फोन कर देंगे। ये उनकी शोहरत थी, उनके नाम से केवल लिख दिए भारत पत्र आता था इसी विश्वविद्यालय में। और A.K. नारायण पैदा होते हैं दुनिया में PhD फिर से दोबारा किया, वहीं फुल प्रोफेसर वहीं ऑफर किया गया था। किताब की टाइटल है इंडो ग्रीक्स। और उसी A.K. नारायण को यहाँ जूता मार के इसी जगह से निकाल दिया गया, सस्पेंड किया गया मदन मनोहर, है ना। तो ये मैं मत कहिए कि इसको आलोचना की बात यह है कि डायग्नोसिस आपको करना पड़ेगा और लिंक जोड़ना पड़ेगा, तभी जाके होलिस्टिक अप्रोच हो। तो डीप इकोलॉजी किसने लिखी थी? डीप इकोलॉजी, डीप इकोलॉजी के तो फादर थे, उनको कई किताबें हैं। अर्ने नास, डीप इकोलॉजी डाल दीजिए केवल इसमें आपके नेट पर देख लीजिए। अर्ने नास, ARNE अलग से NAESS, अर्ने नास। मैं अब अपनी बात 2-4 मिनट और कह लेता हूँ। हम लोग वेट कर रहे हैं R.N सिंह साहब का। कहाँ तक सर पहुंचे, कुछ आइडिया लगी? किधर तक पहुंचे? 2 बजे। ठीक है ठीक है, तब तक हम लोग फिर अपनी पंचायत अभी शुरू कर देंगे। अच्छा ठीक है, तब तो ठीक है। रमेश जी दूसरे में बैठे, गिरी जी का तो हमें आइडिया नहीं चला, लेकिन रमेश जी दूसरे में बैठे। तो ये 2 बातें आपको हम कहना चाहेंगे कि जब हम शास्त्रीय विधि की बात करते हैं तो एक बड़ी भारी कमी ये है, फलां ने लिखा है और वो हम पढ़ लेते। हमने कभी कोशिश नहीं की ओरिजिनल जानने की। जैसे आप सभी लोग कह रहे हैं, 3 चीजें जो यहाँ भयंकर गलती के रूप में जा रहा है, मैं कहना चाहूंगा दर्ज 80 कह रहे हैं। 80 नाम का शब्द कहीं है ही नहीं, शब्द है 80। 80 मतलब 80 हो गया, 100 कर देंगे 80 हो गया, माफ कीजिए। आज मैं फिर रेफरेंस उलट के आया कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई कह दे तो मुझे बताना पड़े, और रखा हूँ अपने डिग्गी में, तो दिखा दूंगा कि देखिए। तो जब आप, जैसे मैं कहा ना यथा नाम तथा वो, तो जब आप वैदिक साहित्य से जोड़ करके मूल नाम जानते हैं तब वो पता चलता है। उसका एक उदाहरण से केवल एक छोटे से शब्द समझिए। जब ये कहते हैं असिनामने शुष्क नद्या, अथर्ववेद, एक ही जगह केवल रेफरेंस, उसके बाद और पौराणिक रेफरेंस। तो उसी काल में इसको शुष्क नदी कहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात आपने वो कही कि नदी के किनारे जो रिवराइन तट की जो बात की गई थी, तो ये कहा गया है कि वहां यज्ञ और क्या क्या करेंगे, तब इसको जो है जावालो उपनिषद में, जो बुद्धिस्ट प्रभाव में भी है, उसमें कहता है कि असि नामने नासी, यह सब आपके जो भी होंगे उसको नाश कर देंगे। इसलिए बार बार नासी की स्तुति की जा रही है असी के नाम पर। अब आया कि रिवराइन का जितना वो तट था जो डिफाइंड रूप में किया गया था नेचुरल वे में, तो डग से किया जाता था। इतने पग इतने अंगुल के करोगे तो माँ की इतनी शक्ति, तो सब खत्म हो गया। तो यह एक बात है। दूसरी एक और बात देखिए, वरुणा नाम का कोई नाम ही नहीं है, और वरुणा से वाराणसी का कोई रिलेशन भी नहीं है। लेकिन ब्रिटिश पीरियड में ऐसा प्रचार किया गया है कि हम सब स्कॉलर जो हैं, मैंने बिना ओरिजिनल कोई सोर्स देखे हुए कहते हैं वरुणा प्लस असी वाराणसी। बोलते नहीं, छपा हुआ सर है, सब जगह यही कह रहे हैं, कहीं है ही नहीं है। आज मैं फुल टेक्स्ट ओरिजिनल देख के इसलिए आया कि कहीं ऐसे महाब्रह्मांड वाले कोई ना आके भूल ही न जाए कि तुम कहाँ पढ़े थे, क्या पढ़ते थे, बड़े होंगे तो बताना पड़ेगा। रखो जो शब्द है
वो है ऑलरेडी इस शहर का नाम जो है वो गोमती के तट पर कैथी के एरिया में, जिस पर विद्या जायसवाल का ऑलरेडी बीएससी पीएचडी कई मोनोग्राफ छप चुके हैं, तो वो नाम जो है वाह का आ नहीं कर दिया, वाराणसी। वाराणसी नदी का नाम जो है हम अथर्ववेद के बाद के कई टेक्स्ट में पूरा छपा हुआ है। ये तो बाद की बात है जब सिटी एक्सपेंड इतना कर गया, और सिटी तो था ही नहीं, वो तो आनंद वन था, तो सिटी कहाँ से आ गई महाराज। और तीन जो थे जो कहते थे त्रिशूलमयी काशी, ये तो जो है मैंने 17वीं शताब्दी के ब्रह्म पुराण में कादी केदार महात्म में तक वर्णन है, यहाँ तो जनसंख्या थी ही नहीं। ये शहर तो बहुत बाद का इधर का विकसित, जो शहर था वो तो राजघाट के उधर से सर्वनाश हो गया। तो उसमें जो कहा गया कि त्रिशूलमयी, तो ओंकारेश्वर का टीला, विश्वेश्वर का टीला, दक्षिण में केदारेश्वर का है। हम लोगों ने जियोलॉजिकल जब अध्ययन किया तो जब पीछे गए 2000 साल पीछे सारे रेडियम और उस तरह के एक्टिविटी से, तो 3 ऐसे ह्यूमन निकले। फिर फील्ड से जब 90s में वर्क किया, तीनों के तीनों सब कट गए, ऊपर से दखल हो गया। तो शहर जो था इस रूप में तो था ही नहीं। बुद्ध को क्या बीमारी थी कि वहां से आते 260 किलोमीटर पैदल चल के ज्ञान मिला, वहां उपदेश देने आते यहाँ महाबदमाशों की नगरी में ना। तो उस समय क्या वर्णन आता है, ये सिद्ध क्षेत्र शब्द है। यहाँ सिद्ध क्षेत्र लोग ऐसे ज्ञानी मुनि रहते थे और छिप के रहते थे, जिसको यदि हम कुछ बात कहें तो हमारी बात मान्यता प्राप्त होगी, इसलिए वो सारनाथ है, शहर में नहीं आए। इस शहर तो बात क्या हुआ, तो इस हिस्ट्री को जोड़ करके आप देखिए कि अस्सी का नाम हुआ तो शुष्क से रहा, रिवर आई जो पकड़ लिया, उसके बाद अब नाला शब्द प्रयोग हो गया ब्रिटिश पीरियड में। तो जरा उसको भी पढ़ के देखिए, सबसे जो स्टैंडर्ड अब तक का मैप है, अब आपका ड्रोन और एरियल फोटोग्राफ तो 50s के बाद ड्रोन तो अब आया है, जो है उसमें जो है नदी नाम ही लिखा है प्रिंसेप में, और ऐसे जो नदी बनी हुई पर डट 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 इस सैंड बेल्ट और इस तरह बने हुए। तो क्या हम तैयार हैं कि इलीगल इतना कैप्चर करके पीछे से मनी देके जो किए हटा पाएंगे? पहले दिन जो कल हो रहा था तो हम इसको देख रहे थे, तो पता नहीं चौधरी जी ने या किसी ने रिमार्क दिया, ये समझना पड़ेगा कि तुरंत क्या सबको हटा देंगे? नहीं, हमको कोई ऐसी स्ट्रेटजी लगानी होगी कि स्वयं उससे मिल करके कुछ दायरे तक हम फिक्स कर सके, लेकिन सबको हटा नहीं सकते। हटा के करिए ना, एक तो कर नहीं पाया। आपके सामने जो है कुल विश्वनाथ मंदिर के कई तो हो गए, बवेला खड़ा हो गया, ऐसे ऐसे बवेला ने इतिहास बताया। कल का एग्जाम्पल बताया तो कल का उदाहरण दिया तो ये खुद ही दिए। तो ये जो बातें होती है इसी को ज्ञान में रूप में, जैसे एक जने को जिसने 10-12 साल से इनके तो इसी से हैं, हमने फोन किया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं, तो पहला उनका उत्तर हुआ हम तो इन्वाइटेड नहीं। हमने कहा श्रीमान हम तो बिना इन्वाइटेड हर जगह जाते हैं, गाली सुनना है सुना, जो कहना होगा कोई कहता है कहिए तो मैं कहता हूँ, नहीं कहे बैठ कर ज्ञान तो लिए। तो यदि आप 80 के मूवमेंट और 80 बचाओ में आप 15-20 साल से अपना जीवन लगाए हैं और 80 को जोड़ कर यहाँ काम हो रहा है, तो आप बुलाना मतलब क्या होता है? इसका मतलब जो आप झूठे एक्टिविस्ट हैं। ये सचमुच काम कर रहे तो जाइए, आप सचमुच आप में वेदना आई गए, आपने कहा ना कि ऐसा हुआ, तब ना आपने समझा कि ऐसा हो सकता है, तब आप फिर सोचेंगे और क्या किया जा सकता है। तो यह एक दूसरा प्रश्न उठता है कि वैदिक साहित्य से अभी तक काशी को जोड़ करके 2 ही केवल किताबें हैं, जो एक ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का है, जो 82 की PhD 85 में छपी हुई है, काशी का प्राचीन भौगोलिक इतिहास, ऐतिहासिक भूगोल, विश्वकर्मा जी, जिसमें सेक्शन 3-4 पेज केवल दिया हुआ प्राचीन नदियां एवं नदी स्रोत। उसके बाद कोई वर्क ही नहीं, कोई वर्क नहीं। ड्रोन नाप देगा हर चीज, ड्रोन बता देगा कि आप जो है क इंच हमसे प्रेम करते हैं या क किलो प्रेम करते हैं, कि फील्ड बताएगा जी। तो हम अपने बच्चों को पढ़ाते थे इम्पैक्ट ऑफ साइंस ऑन मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग, तो पहला सब बाहर वाले बच्चे तो कहते थे, तुम लड़कों बताते थे थोड़ा क्रैक है, सावधान रहना, वो झगड़ा भी कर लेता है, ऐसा टीचर है, वाले सुनना चुप। पहले दिन जो हम करते थे मैं आपसे साझा कर, अभी टाइम है इसलिए बक रहा हूँ। हाँ ठीक है। तो हम लिखते थे कि मैं जो क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ ये उस आदमी का क्वेश्चन है जो थियोरेटिकल फिजिक्स में सबसे अधिक एक एस्पेक्ट पर पेपर छपा है, उसका नाम है क्रॉस थियरी, द सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड क्रिटिकलिटी थियरी।
या क्राइसिस थियरी, तीनों एक ही है, थोड़ा बहुत इधर उधर। देने वाले हैं पर बैक 1967 में यंग लिया था, उसके खिलाफत बड़ा MIT में तूफान निकाला गया। बाद में जो है उस पर इतना रिसर्च हुआ पाया गया, अभी तो छप ही जा रहा है। मूल रूप से माने ये है 2003 तक उसमें 2500 पेपर एक एस्पेक्ट पर छपे। तो क्या एस्पेक्ट कहना चाहता है? तो कहना ये चाहता है कि भाई ये प्रकृति के नियम में कई चीजें इस तरह जुड़ी हुई हैं। तो क्राइसिस इज ए पार्ट ऑफ रियल इवोल्यूशनरी थियरी। तो आपको उस रूप में ही लेना होगा, उसको आप बदल नहीं सकते। तो ये बात मैं इस रूप में कहना चाहता हूं कि यदि जब हम इसको जोड़ करके, जैसे वर्णा का है, अस्सी का है, शहर के विकास का है, काशी कॉरिडोर आपने सुना होगा, प्राइम मिनिस्टर पहले क्योतो बनवा रहे थे, फिर बार्सिलोना बनवा रहे थे, फिर संटियागो कस्टम पेला बनवा रहे थे, उसके बाद सब बनवा के मोदीपुरम बनवा रहे थे, उसके बाद अब क्या बनवा रहे हैं, तो अब विश्वनाथ कॉरिडोर धाम बनवा रहे हैं। कभी किसी से पूछा गया उसकी कमेटी में कोई बनारस का है? कोई नहीं है। उस पर कोई लेख लिखा जाए तो यहाँ खाली झूठ प्रशंसा लिखा जा रहा है, क्रिटिकल कोई सुनने को तैयार ही नहीं। भाई आप उसको शास्त्रीय विधि से लेंगे, जोड़ेंगे, तब जो है समाज आपके साथ जुड़ेगा। तो एक गैप आपके, तो भाषण में तो आप पॉलिटिक हैं। हमारे लिए बहुत इजी है कि मैं जापान में बड़े इजीली जो है वहाँ के साइंटिफिक मिनिस्टर या कल्चर मिनिस्टर से मैं जब जाता हूँ तभी मिल जाता हूँ। क्यों भाई? भारत से। क्यों भाई? तो हमारी कल्चर का जो मूल जड़ है वो भारत से, और हमारे पर लिखा है इस व्यक्ति ने, ओ माय गॉड स्पेशल आओ। तो हमारे जापानी मित्र भी कहते हैं कि तुम तो अच्छा बनारसी ट्रिक लगाते हो, दो चार इधर उधर सुना देते हो, तुरंत टाइम मिल जाता है। यहाँ भी कभी होता है? कभी नहीं। BHU के यही डिपार्टमेंट या किसी डिपार्टमेंट का ये कितने लोग हैं जो बनारस या अस्सी और वर्णा को लेकर के खड़े करके, जैसे आपने कहा कि आप ऐसे कीजिए कि वो आपको आए, वो क्यों आएंगे? हमारा संस्कारी ब्यूरोक्रेसी ऐसी है, नहीं आ सकती। तो कई चीजें हैं कि शास्त्रीय विधि में भी हम नहीं कर पाए। तो छोटा सा सवाल, मेरा सवाल क्या निवेदन है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय महामना के अंतिम बेड पर पड़े हुए जब छोड़ रहे थे, बिरला जी के बड़े भाई बलदेव जी जब हम बैठे हुए थे, जिसका रिकॉर्ड यहाँ अवेलेबल है, जब रोने लगे, कांपने लगे, उसके बाद प्राण छूट गया उसके 1-1.5 घंटे बाद, तो उन्होंने कहा कि मैंने आपको आदि रूप भगवान माना है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? जिंदगी भर तो भीख मांगने में पैदा हुए, सभी को किए, विश्वविद्यालय इतना बड़ा किया, अब क्यों रो रहे हैं? तो कहे कि पैसा नहीं है। काहे लिए पैसा? तो कर्जा, जो आता था पूंजी काट देते थे, 2.5 लाख कर्जा था बच्चों को, वो दे दिए थे। तुरंत बलदेव जी कहे कि ये मस्त टोटल। दूसरा क्या है? मंदिर नहीं देखा, केवल लिंग देखा। वो मंदिर नहीं है, वो हमारे सनातन धर्म की वो जड़ होगी जो दुनिया में मर है, और इसका राज न खुले। तुरंत दूसरा किया, आप रोना बंद कीजिए। अकेला मंदिर शायद ये होगा कि नीचे बहुत कम लोग जानते हैं, ताम्रपत्र पर वैदिक उपनिषदिक सभी चीजों को इंस्क्राइब करके नीचे दबाया गया इस मंदिर। सभ्यता ये सब समाप्ति हो गई तो वो रहेगा, तो बलदेव जी का ही कराया हुआ है। और उसी वक्त उन्होंने वचन दिया कि जो भी हमारा सब कुछ भी लग जाएगा, जाके मंदिर में चले जाइए, दानदाताओं की सूची भीतर से देखिए, ऊपर लिखा है बिरला, चिन्ह है रुपये का, लिखा नहीं है कितना, जाके देख लीजिए। कहा कि ये रहेगा ही नहीं, वचनबद्ध है। और तीसरा कहा कि काशी के लिए कुछ नहीं। एक तो उदाहरण दिया कि गाँव ना उजाड़े, आपने उजाड़े, आखिर बसे हुए थे ना, उनका चाहिए था रूरल डेवलपमेंट स्कीम, नहीं चल पाई, तो वो एक होना चाहिए था। क्या हुआ? हैं? हाँ भाई, ठीक है, हम लोग का अभी मेंटल लंच चल रहा है, अभी जो है उस लंच के करणाधिकार आने वाले हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हुई जिनको पता नहीं, जैसे इतनी संवेदनात्मक जो बातें हो रही हैं, क्या अप्लाइड रूप में उनसे जोड़ करके कहीं कुछ किया जा सकता है? क्या नाना जी का यहाँ एक फूल खिला सकते हैं? कहीं एक छोटा सा कोई भी एरिया लेके आप बता सकते हैं कि याज्ञवल्क्य के का यह आश्रम है जहाँ जाके आप लोग जाए सब भूल गए? तो झूठे काहे को गीत गा रहे हो मधुर मनोहर अति सुन, काहे को ये गीत गा रहे हो? करके दिखाओ ना।
ये जो एक प्रचार है दुनिया में अपना एक विश्वविद्यालय है। आपको पता है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे 150 विश्वविद्यालय हैं अमेरिका में, ये मैं गप्पे नहीं मार रहा। और आपके भारत में भी ऐसी संस्थान है जो आपके 10 बिल्डिंग को एक साथ तोड़ने चले जाइए केवल उस्मानिया का देखा, ऐसी नहीं बात। छोटे छोटे जगहों पर चले, उन्होंने एक प्रैक्टिकल रिसर्च करके अप्लाइड किया है। नई यूनिवर्सिटी है जो अभी 8 ही साल नहीं हुआ, मैं कोई उनका एजेंट नहीं हूँ, इंडस यूनिवर्सिटी करके प्राइवेट खुली, उन्होंने किया है सेंटर ऑफ इंडिक स्टडीज। दुनिया के हर विद्वानों को कह रहे तुम बताओ जोड़ कर कि वैदिक शास्त्र और शुद्ध आज का साइंस जोड़कर बताओ जी कैसे है। क्या कभी इस विश्वविद्यालय में यहाँ सुभाष का इसी विभाग में आए हुए थे, सब लोग मजा ले रहे थे, कहा यही जगह भोजपुरी मजा ले रहे थे। इसी अभी 2 साल पहले इसी के पहले वाली कॉन्फ्रेंस सुभाष का, जो आजकल स्पेशल साइंस एडवाइजर बनाए गए हैं, मोदी जी के पद्मश्री देव के बहुत रिक्वेस्ट करके बुलाए गए हैं। ये अकेला आदमी है जो प्योर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर लाइफ लॉन्ग है, प्योर संस्कृत और कश्मीरी सब ले करके एकदम ठीक उसका एकदम प्योर अप्लाइड साइंस दोनों के साथ 3 आदमी ऐसे हैं। थैंक्स गॉड कि मोदी जी ने तीनों को पकड़ के आनर दिया किया। एक ऐसा भी आदमी है कि राम सुब्रमण्यम, जो कोई एक दिन का टीचिंग नहीं है, डायरेक्ट डिस्टिंग्विश प्रोफेसर ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स है, IIT जहाँ पढ़े हुए, ये भी नहीं जानते होंगे। खड़ाउे में आता है, जटाधारी है, अचला है। गुरु का आदेश हुआ कि देखो मिनिस्टर से लेकर सब लोग कह रहे हैं अब तुम्हें ये करना है तो करता है, ही कैन डायरेक्टली टॉक। तो उन लोगों को जब हम जोड़ करके, जैसे मैं 2 बार चित्रकूट गया, 1 हफ्ते रह के हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वेव से ये कर रहे थे कि रामायण कहाँ तक सही है, ये हम लोग की खोज थी। पाया गया 90% सही। अभी परसों हमारा लेक्चर हुआ था, तो वो लोग ऐसे आँख फाड़ के कह रहे थे, हमने कहा मेरा कथा नहीं, आप जबरदस्ती बुलवा रहे हैं बीच में झूठ जोड़ करके, मेरा कोई काम नहीं, मैं असिस्टेंट के रूप में, ये है जानकी मालविल लिख दीजिए, आर्टिकल आपको मिल जाएगी। आधी आर्टिकल समझ में नहीं आएगी, कुल वेव स्कूल कैलकुलेशन है, सभी चीजें तो वाल्मीकि कैसे जोड़े थे। तो यदि हम ये संस्कार बच्चों में डाले, एक एक वनस्पति का वो बताता है। वहाँ शुद्ध जल का 172 फीट पर 312 फीट वहां से जाना है लालापुर में, तब वाल्मीकि आश्रम। तो मैं उदाहरण दिया कि चीजें इस संस्कृति में थी, आज भी हैं दबी हुई, तो उनको जब ही हम उलट के ले आएंगे इसमें, तब न भाव जगेगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता है? ऐसे भी विश्वविद्यालय हैं जहां चपरासी नहीं होता है, टीचर साफ करता है, और इसी विश्वविद्यालय में यही न्यूज शुरू हुई थी। अब कहाँ तो देख तो रहे सब जगह डस्ट है, मशीन ठीक बन गई, फिर तो देख ही रहे तमाशा। क्यों नहीं है वो संस्कार मिला? कहाँ गया संस्कार? तो कहना तो बहुत आसान है, करना बहुत कठिन है। तो पहला 2 नाव मेरा प्रस्ताव के रूप में आप सबके सामने, पहला तो हो कि कॉन्फ्रेंस हुई, कॉन्फ्रेंस करना बड़ी अच्छी बात है, इस पर ऐसे टाइटल दे दिया गया, ये भी बहुत अच्छी बात है। सबको मिलाकर क्या हम एक रिपोर्ट बना सकते हैं जो आपने कहा कि सबके तक पहुंचे, टेक्निकल भाषा में, जैसे ला का किया तो इंडिकेट किया, फिर उस ला को कैसे जोड़ दें, वो बातें जिससे पब्लिक तक वो पहुंच सके। सर ये जो टाइटल है ये IITs में पिछले 13 वर्षों का प्रयास से मैंने पहुंचाया। अच्छा, तो ये अभी देख रहे हैं हाँ, कि सभी IITs में जब कॉन्फ्रेंस होती है वाटर पे ये कंटेंट जरूर। तो ऐसे कई चीजें हैं, कई ऐसी चीजें हैं जिनको इस तरह करके हमने इनसे कहा था, ये कहे कि कल आप आज नहीं आए, हमने कहा कल तो आप हमको कहे नहीं थे, आप कहते कि रहिएगा, तो रहे अपने घर पर, देखे 2 घंटा, आप कहते आज रहना, रहेंगे। तो सवाल ये है कि जैसे इसी को आजकल हाईटेक का जमाना है, ई पब्लिकेशन कर सकते हैं, नेट पर जा सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों, जिससे सब लोग इसको जान सके। इस विचार को एक बना करके, ये विचार मंथन का है, चेतना का है, सेल्फ रियलाइजेशन स्व चेतना का है। तो गांधी जी के शब्दों से मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। उनका ये कहना था कि भाई अनुभव से अनुभूत की ओर कहाँ चलना है, अनुभव से अनुभूत की ओर। अनुभव, रियलाइजेशन, इंग्लिश में बहुत सुंदर ट्रांसलेशन हुआ है, फ्रॉम रियलाइजेशन टू रिवेलेशन, देन ओनली वी कैन डू द जॉब एंड वी कैन रीच टू द एंड। और ये आप कहें कि नहीं है, तो आज भी ऐसे जगह, जर्मनी जैसे जगह में, जहाँ बाहर की जो भी, इटली जैसे जगह में मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ जहाँ ताले नहीं लगते। हाइडलबर्ग से करीब 120 किलोमीटर दूर गाँव है, 10 ही 12 घर है, वहाँ ताला लगता ही नहीं, ताला आई नहीं।
अब कैसा है, इस सिकड़ी वाला चढ़ाने वाला सबके द्वार किसान है। तो हमारे आदि गुरु वहीं रहते हैं, इसलिए मुझे अक्सर मौका मिलता है जाने को और रहने को। और कहीं से कुछ भी आप किसी दरवाजे पर चलेंगे, कुछ नहीं हो तो अपना जर्मन में बोला, वो तो आती नहीं जर्मन, एक बात का इंडो इधर से ले आके फल दिया, इंडिया, इंडिया से कहाँ से, इंडिया के ये वक्त है। हम लोग बनारसी हैं तो हम लोग तो ठीक जानते हैं, फ्री फंड का भी जानते हैं। मैंने अभी परसों उनको उदाहरण दिया कि आप कहते हैं सब जगह मेटलिज्म है, तो सबसे बड़ा वो कौन शहर है जहाँ सबसे अधिक लोग जाते हैं? यहाँ 1.5 लाख लोग रोज बाहर से आते हैं देखने। ऐसे रही जो आप झूठ आंकड़े बनाते हैं 5 गुना करके, फील्ड स्टडी किया नहीं, झूठे बता रहे हैं सर टूरिज्म के आंकड़े। तो आप सत्य हैं, हमने कहा हम फील्ड से बोल रहे हैं, हम कहाँ कर रहे हैं हम सत्य, हम लेकिन फील्ड से तो बोल रहे हैं। रूम में मैंने टेस्ट किया, मेरा कैमरा खराब हो गया, फंस गया दुकान पर, ऐसा दिखा इंडो चाउ चाउ नमस्ते इंडिया से मैं हूँ। इशारे से बताया कि मैंने रील कहीं फंस के कोल्ड वाला कैमरा गया भीतर, उसमें डार्क रूम में उसको सेट किया, चालू कर दिया, जो करते हैं सब फिर नो लॉस नथिंग। 5 या 6 यूरो लिखा उसमें, तो अपने पॉकेट में जो ही ऐसा और हमको जो है कुछ ऐसे कार्ड और ये गिफ्ट दिया, इंडिया से आए हैं और इससे मैं बताया कि मैं साइंटिस्ट हूँ, यहाँ इन्वाइटेड हूँ, बस इतना। क्या आप बनारस में भी ये कर सकते हैं? बड़ा भारी कह रहे हैं कि टूरिज्म चलाएंगे, आध्यात्मिक नगर है, आध्यात्मिक नगर है, तो शंकराचार्य को गलत श्लोक करके पीटा क्या? बस खत्म होने जा रहा, लास्ट कंक्लूड सबका। हम लोग अपनी 5 रत्न 5 भिड़े हुए हैं, खडानंद जो है अपना चला रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम जोड़ करके, ये सबसे लिंक हम लोगों की बात से जुड़ती है। तो लास्ट में मैं कहूँगा कि जय भोलेनाथ 2 मिनट में आशीर्वाद दे दें। ये जो पंचभूत परमेश्वर लोग हैं, ये सब आप लोगों के लिए लंच रेडी है। हाँ, अब आप लोग जब इधर से समरी बना देंगे तब वो लंच करके फिर पोस्ट लंच में चालू हो जाएगा। पीके से सर वो R.N सिंह साहब आएंगे 2 बजे, उसके बाद समझी कराएंगे, पोस्ट लंच करा देंगे सभी 2 बजे आएंगे। देखिए एक बात है, पुलिस का अपना एडमिनिस्ट्रेशन है तो एकेडमिक्स का भी एडमिनिस्ट्रेशन। ओके सर, तो लंच कर लेंगे। ओके सर, ओके सर। R.N सिंह साहब ने अगर कहा है तो वो आ रहे हैं, वेलकम। लेकिन हम लोग का जैसे डेकोरम डिसिप्लिन तो है। ओके ये छोड़ देना रिपोर्ट, फिर रिपोर्ट ठीक है सर जरा